को हिंदी चाहिए, इंग्लिश, और both would work. Hindi and English both. Type it down in comment box. English, both, English, either, English. Okay. Keep it bilingual. English, English, English. Okay. Okay, so let's wait for 1 more minute, guys, and after that we'll proceed further. I'll be giving you guys the I'll be showing you basic roadmap कि कैसे आगे जाएंगे हम लोग. So, are you guys excited? Cool. Okay. Can we increase the frequency of these classes? Well, Aryan, it depends on the response. If every one of you wants it, we can think of it too. One request from my side, guys. आप लोगों ने शुरू किया है ये कोर्स, like today we're gonna start, so please stick to it. Okay, don't leave it in between or after attending 1 or 2 week. Stick to it. It will be really very helpful. Okay. So now I'm gonna show you guys that how we're gonna proceed further, and I'll give a brief intro about data structures and algorithm, and after that I'll tell you actually that what we all gonna read in week one. So let's get started. Let me share my screen. Tell me in chats, guys, is my screen visible? Okay. So key points, as you can see, I'm gonna tell you what is data structure, why data structure, and types of data structure. So let's get started with what is data. As you can see, data is collection of raw facts. See, it is very basic thing. What is data? If you talk about computer, sorry for the inconvenience, guys. So yes, I was talking about data. So you must all be already familiar with the word data. It is very common and in our like everyday lives too. So if you talk about computer science, you all must be familiar with either of programming languages, and there we represent data in with the help of data types, be it int, float, char, boolean, etc. So yeah, in computer science we represent data using data types. So that's it about data. Now the main thing, data structure. See,
In one line, I'd say data structure is structure of data, and Hello, Nisa, are you there? I think there is some network problem. Okay. Nisa, are you there? Hello, Nisa? am I Nisa, are you audible? there? Hello, Yeah, you were am I audible. audible? Yeah. Please continue. Yeah, okay. Okay, sorry for the inconvenience, guys. So, yes, I was talking about data structure. See, in most of the websites and in most of the courses, we get, or most of the people actually, we get to hear that data structure is just the structure of data, arranging data in a structure. But that is true, actually, that is not wrong, but that is incomplete, I'd say, because data structure is not only about arranging data in structured format. It is about arranging data in keeping logic between the elements of data and then arranging, we can say logical relationship exist between the elements of data. So this is what data structure is. Now I'll take an example to explain it. So um, yeah, suppose there is a shop, okay, and there are plenty of people scattered all around the shop to shop, okay. So we can assume those people as data, okay. Please hear it carefully, because this is gonna clear the concept that what data structure is. So yeah, so there is a shop and there are people scattered around to buy things from that shop. और जो उस दुकान में जो एक बंदा है वो देख रहा है और उससे देखा नहीं गया कि मतलब इतना भीड़ है और कुछ भी सही से नहीं हो रहा है, जो पहले आया उसको पहले नहीं मिल पा रहा, जो बाद में आया वो पहले लेकर चला जा रहा है. So he couldn't see that. Suppose he couldn't see that, and what he decided is he announced among all those people who were scattered around the shop to stand in a queue, okay, stand in a line basically. And the rule that he gave them is the people who come first, जो पहले आया था उस दुकान में, वही उसी को पहले वहां से खरीदने का मौका मिलेगा और वो खरीद के फिर चला जाएगा. फिर उसके बाद जो आया था वो खरीदेगा, फिर जाएगा. सो देखो, उसने डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कि उसने उनको जब लाइन में खड़ा किया तो वो हो गया कि उसने डेटा को स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है. अब लॉजिक जो उसने लगाया, वो लॉजिक ये था कि जो पहले आया था वो पहले जाएगा, फिर उसके बाद जो आया था वो जो लास्ट में आया था वो लास्ट में खरीद के निकलेगा. तो इससे हम लोग डेटा जो लोग थे वो हो गए, और स्ट्रक्चर और लॉजिक जो उस बंदे ने दिया, उनको लाइन में खड़ा किया, ये चीज हो गया. तो इनको कलेक्टिवली अगर हम लोग देखें तो दिस इज व्हाट डेटा स्ट्रक्चर वुड बी इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म, ओके. सो आई होप विद दिस एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर हुआ होगा डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है. कि मतलब आप अरेंज तो कर ही रहे हो लेकिन साथ में लॉजिक भी दे रहे हो, ठीक है. कि ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग सिर्फ डेटा को अरेंज कर देते हैं, कुछ फॉर्मेट है एंड वी अरेंज द डेटा. नो, इट इज नॉट दैट. वी प्रोवाइड अ लॉजिक, देयर एग्जिस्ट सर्टेन लॉजिक एंड देन वी अरेंज द डेटा, ओके. सो नाउ let's see why data structure. See, now we saw what data structure is. We saw the definition of it. Now let's talk about why data structure. जरूरत ही क्यों है data structure की. हमारे पास एक language तो है ही, फिर data structure क्यों? Why data structure? So the first key point would be
it provides efficiency to the whole computer science world, actually, because data structure is not only used in writing programs, doing CP, and only that. Data structure is used in operating system, artificial intelligence, machine learning, web development, etc. We can say actually that data structure is used in hugely used in this computer science world to achieve efficiency, right? So this would be one importance of data structure. Another is it organize our data. जैसे कि हमने अपना पिछले एग्जांपल में भी देखा कि कैसे लोग scattered थे, फिर हमने उनको organize कर दिया एक line में, and things became so easy, right? So this would be another second advantage of data structure. So to enhance the efficiency, to write a computer algorithm in better way using better data structure, these factors can be considered for using data structures, right? So now let's see types of data structure. So there are, see, at many places you'd encounter types of data structure as linear, non-linear. Yeah, we'll go to that, but before that comes these two types: primitive data structure and non-primitive data structure. Okay, if we talk about primitive data structure, if you guys are familiar with any of the programming language, you are aware of primitive data structure, because primitive data structure is nothing but the data types that we use in general, like integer, float, boolean, char, etc. So these are called primitive data structure. Now why primitive? Because they are already defined by our computer, right? Because जैसे int ही का मान लो, उसका एक certain range है, ठीक है? We have to use the value. If we are assigning any variable with int data type, then we can only use it under the range of int data type, right? So this is what you guys are already familiar with primitive data structure. I just told the name that comes under, like, all the data types are primitive data structure. Now non-primitive data structure. See, non-primitive data structure is derived from primitive data structure. The computer itself has not defined it. We are the one who will define and write the data structure, and will work on that. So these are I just told you the difference between primitive data structure and non-primitive data structure, and also what is primitive data structure and non-primitive data structure. Now talking about again non-primitive data structure, we are gonna see the it in broad view. In fact, in this whole course we'll be talking about non-primitive data structure only. So let's move ahead. No, before moving ahead, I'll tell you one more thing, that non-primitive data structure is further categorized into two data types. Two data structures: linear, non-linear. Now I think I should show you the this table. Yeah. So here you can see primitive, integer, character, float, string, double. So these data types come under primitive data structure. Now non-primitive data structure: linear, non-linear. So in linear one, we can see there is array, queue, stack, linked list. Now again, in linear data structure, we can categorize them in two types: static and dynamic. So array is static. You can note it down. Array is static data structure, while queue, stack, linked list, these are dynamic. Now what do I mean by calling them static and dynamic? So guys, one example I would give, array, we have to define the size of array at the beginning itself, and in later on we cannot change it. So that's why it is static. Now if I talk about queue, stack, linked list, I can easily make changes in their sizes and stuff. So yeah, that's why they are dynamic. Okay, so in this course we'll talk about arrays, queues, stack, linked list, tree, graph. So we'll go one by one in each data structure. Yes. Now if we talk about algorithm, so see, I'll tell you algorithm. You all of you must have written any computer program, like suppose you must have written a program for adding two numbers, right? So that program itself had an algorithm, but since you didn't know the definition of algorithm,
you didn't realize the fact that you are applying certain algorithm into that, because algorithm is nothing but just, it is just finite steps of instruction to solve a problem. Make sure to keep this point in mind, that algorithm is finite step. Like, it has finite steps. It's not like you can write like unwanted steps and the step that doesn't add value to the program. No, it should be precise, it should be finite. So this is what algorithm is. It helps us to solve like a lot of problems. Okay, so we'll be discussing different algorithms in this course too. We'll see that. Now let me tell you guys about what are our next steps. So in next week, we'll be teaching you all about arrays. After doing arrays and questions on the topic array, we'll move forward and talk about searching, different type of searching, linear, binary. Then we'll move to sorting. There too, we'll discuss different type of sorting algorithm available, and we'll do different questions on sorting itself, and then we'll proceed to 2D arrays. Okay, and after doing these three things, we'll shift to next data structure. And let me clear it. We are gonna do a lot of questions, and we're gonna give you a lot of questions to do it by yourself also. And if you have any doubt, if you encounter any doubt in any of the question that we give you, you can share that in Telegram group as well, and we'll be happy to solve your doubt. Okay, so yeah guys, if you have any doubt till now, please write it down in the chat. I'll be happy to answer. Okay, rest. What about you all guys? Okay, I think that's it. So okay. So see guys, this was just the introduction that we gave, that what we're gonna cover, and I explained data structure and stuff, basic thing. Okay. So this is how we will proceed further with the course. Now I'll tell you guys about the topics that we'll be covering in week 1. Be interactive guys. If you have anything to ask or any changes that you want, you can write it down in the chat box. Okay, all right. So before moving ahead, Tisha, let them clear one point, that since we have started this DSS sessions on Sunday only, right? So we will have 2 hours in a week, right? तो हमें वीक में सिर्फ 2 घंटे मिल रहे होंगे, तो हम उस 2 घंटे में उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें. आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, मोस्टली 2nd ईयर 3rd ईयर के हैं, तो मोस्टली उन्होंने डीएसएस स्टार्ट करा होगा, कुछ बीच में पढ़ रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होंगे जिन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि हम इस डीएसएस सेशन को स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट कि अगर आपने किया है या नहीं भी किया है, ठीक है, तो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल है. अगर आपने किया है देन वेल एंड गुड, आपके लिए एक वो रिवीजन होगा, क्योंकि हम जो भी पॉइंट्स इसमें कवर कर रहे हैं ना, वो हमारे हैंड पिक्ड हैं. ठीक है, मतलब मोस्टली जो हम लोगों ने इंटरव्यू से या फिर मोस्टली जो हमने देखा है कि जो प्लेसमेंट्स रिलेटेड जितने भी प्लेसमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं या जो टॉपिक्स है, तो हम मोस्टली उसी को इसमें कवर कर रहे होंगे. ठीक है, सिंस कि आज हमारा इंट्रोडक्शन है, तो हम बस आपको ये इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि हम कैसे इसके साथ आगे जा रहे होंगे. तो इट्स नॉट दैट कि आज आपका सेशन बोरिंग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है. ये तो निशा ने अभी एक इंट्रोडक्शन दिया
कि हमारा नेक्स्ट स्टेप का प्लान क्या है नेक्स्ट वीक का। हम एरेज डिस्कस कर रहे होंगे, फिर उसके बाद क्योंकि सबसे पहले तो हमारा एरेज, क्योंकि एरेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट वीक में एरेज ही कवर करेंगे। उसके बाद हम आपके रिस्पॉन्सेज, हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो हमने आप लोगों के लिए एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो आप प्लीज लास्ट तक स्टे करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां पे ज्वाइन करें। आप अपने जो भी डाउट्स हैं आप वहां पे पूछ ले, आप अपने जो भी डाउट्स है, जितने भी सिली मिस्टेक्स आप करते हो कोडिंग से रिलेटेड, कोई इशू नहीं है, कोई आपको जज नहीं कर रहा होगा वहां, आप अपने डाउट्स वहां पे ड्रॉप करो, हम आपके डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे। और ये जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मतलब पढ़ाई ऐसा, मतलब क्योंकि हमने इसीलिए संडे को ये प्लान किया है ना, क्योंकि संडे को मोस्टली आप फ्री ही रहते हो और 2 घंटे देने में आपका कुछ नहीं जाता है, आप यहाँ से कुछ सीख करके ही जाओगे, ठीक है। तो ये हम ऐसे स्टार्ट कर रहे होंगे कि हम पहले आपको थोड़े बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स बताएंगे, ठीक है, फिर उस पर हम प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के अलग अलग लॉजिक, ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है उसके, हम अलग उस ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं उससे, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम लॉजिक बिल्ड कैसे करें। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि हाँ चलो ये क्वेश्चन है और इसका ब्रूट फोर्स ये सोल्यूशन है और इसका ऑप्टिमल ये सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है। हम आपको वो लॉजिक बिल्ड करना सिखाएंगे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि प्लेसमेंट्स में मोस्टली आपको अनसीन क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, तो आप वहां पर कैसे लॉजिक बिल्ड कर पाओगे नए नए क्वेश्चंस को देख करके, ठीक है। तो मोस्टली हमारे डीएसए सेशंस ताकि आप सीखे और आपके साथ हम भी सीखे, इसलिए हमने ये डीएसए सेशंस प्लान किया है, ठीक है। तो ये तो था इंट्रो। तो इस सेशन में हम मोस्टली क्या कवर कर रहे होंगे, C++ और जावा, क्योंकि मैंने पोल में पूछा था, आप लोगों ने बोला कि यहाँ पे मोस्टली C++ और जावा दोनों यूजर्स हैं, ठीक है, तो काइंडली आप चैट में ड्रॉप कर दो कि आप C++ प्रेफर करोगे या जावा, ठीक है, आप चैट में प्लीज अपने आंसर दे दो। ओके, CPP, गुड, CPP, ओके। So mostly you are CPP users and but पोल में जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप था उसमें मोस्टली जावा यूजर्स भी थे, ठीक है, क्योंकि जावा के वैसे यूजर्स कम थे, बट फिर भी हमने सोचा कि अगर जो बच्चे जावा में कर रहे हैं तो फिर उनको ऐसा ना हो जाए कि कोड करने टाइम पे उनको दिक्कत हो जाए, तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, लाइक whatever we will be teaching in this session, we will going with one language only, okay, we will be teaching you either C++ or Java in session, and like the code in the other language, like I'll be teaching C++, then the code in Java will be dropped in the Telegram channel. There you can see if you like face any difficulty while coding, so you can take a reference from that code, so it will be like good for you, okay। अगर आप कहीं पे फंस जाते हो तो आप कोड देख करके उसका रेफरेंस ले करके आप वहां से फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारा बेसिक अभी फंडा यही है कि हम 2 लैंग्वेजेस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, और अगर जो जावा यूजर्स हैं अगर वो ज्यादा कंफर्टेबल हैं जावा के कोड करने में तो वो टेलीग्राम चैनल में बता सकते हैं, ठीक है, फिर उनके अकॉर्डिंग हम कुछ प्लान कर लेंगे अलग से। और ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि जो अविराज है तो वो आपको जावा के कुछ बेसिक्स, जो क्योंकि आज इंट्रो है तो अविराज आपको जावा के कुछ बेसिक्स बता रहा होगा, और फिर मैं CPP के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स आपको बता रही होंगी जो आपने C++ आपने किया होगा नो डाउट, बट मैं जो आपको बता रही होंगी वो मोस्टली डिस्कस नहीं होते हैं। तो प्लीज आप पहले, अविराज आर यू देयर? Yeah, Supriya, I'm there. हाँ, ओके, सो अविराज प्लीज स्टार्ट, प्लीज Okay, thank you, कंटिन्यू, Supriya. आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू विद C++। Okay, thank you, Supriya, for handing over me. Okay. तो हेलो गाइस, I'm Abhiraj, and यार एक बात सुप्रिया ने बताया ना कि अगर आपको CPP में डाउट हो रहा है, फिर जावा में कोई डाउट हो रहा है, तो यू विल शेयर योर डाउट्स ऑन टेलीग्राम ग्रुप, वी आर एबल टू सॉल्व वी आर हियर टू सॉल्व योर डाउट्स, ओके। एंड यार ये जो सेशन हम करा रहे हैं ना, ये कोई लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, या फिर ये मतलब ये CPP बेस्ड नहीं है, या फिर कोई जावा बेस्ड नहीं है। मतलब अगर आप डीएसए सीखने आ रहे हो ना, तो यू आर एबल टू बोथ कोड इन बोथ द लैंग्वेजेस, इन C++ एंड जावा, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसा ना, मतलब जब आप डीएसए सीख रहे हो तो आप किसी लैंग्वेज पे नहीं हो सकते हो बाउंड कि अब मुझे यार CPP में ही आता है, जावा में ही आता है। इसीलिए हमने क्या सोचा है कि यार सही बोला सुप्रिया ने कि ग्रुप में जावा के बच्चे हैं, C+ के बच्चे हैं, तो हमने क्या किया, दोनों का बैलेंस करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग कोड इन बोथ द लैंग्वेजेस। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसे कोड कर लेना, बट सेशन जो होगा ना, सेशन जो हमने करा, हम सोचे हैं कराने का, उस दोनों लैंग्वेज में करेंगे, C+ में भी करेंगे, जावा में भी करेंगे। इसलिए पहले हम क्या कर रहे हैं कि आपको ना दोनों लैंग्वेज बेसिक बता रहे हैं। आई नो कि C++ सारे लोगों को आता होगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन योर सेकंड सेम आई थिंक इन कॉलेज, बट जावा अभी सबने नहीं सीखा होगा, जिसने सीखा कि वेल एंड गुड है, बट नहीं भी सीखा तो मैं आपको इतना आज बता दूंगा कि आप यू आर एबल टू कोड इन जावा, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
मैं आपको एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ जावा मतलब क्या होता है, वाई वी प्रेफर जावा ओवर सी प्लस। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि यार अगर आपने किसी सुना हो तो बोलेंगे कि जावा बेटर है, सी प्लस मत कर भाई कोडिंग। ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ लोग प्रेफर करते हैं जावा। सो ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे होगा, मतलब जावा क्यों करना है, क्यों सी प्लस में सी प्लस भी करना है, क्यों जावा भी करना है, जावा बेटर किए हैं उससे, एंड जो नॉर्मल हमारे बेसिक्स जावा के वो क्लियर करेंगे। तो ठीक है यार, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। नाउ वी विल गो विद जावा बेसिक्स ऑफ जावा। गिव मी अ सेकंड। Supriya, please guide me if my screen is visible or not. Yeah, all right, Abhiraj. Okay, thank you. So यार मतलब अगर आप कोई मुझसे पूछे कि या फिर आपसे पूछे कि why Java, why to choose Java over C++. Okay. So मैं आपको ये पहले बता दूं, there are lots of differences, similarity between C++ and Java. सबसे पहला सिमिलरिटी क्या है ना कि यार आपका जो जावा होता है और C+ होता है, दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो दोनों में आपके पास ओप्स का कॉन्सेप्ट आता है, एंड बहुत ज्यादा सिमिलर तो नहीं कह सकता हूँ, बट या दे आर सिमिलर बिकॉज ऑफ देयर कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक। अगर जो कोड में लिखते हो वो तो सेम होना ही होना है। एंड देयर आर वन एडवांटेज ऑफ जावा कोड, राइट वंस रन एनीवेयर। ये क्या बोल रहा हूँ, आई विल डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स। ओके, मतलब ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जावा कोड के साथ कि आपने एक बार कोड लिखा और आप उसको बार बार कहीं भी किसी दूसरे ओएस पे रन कर सकते हो। जैसे मैंने अगर विंडोज में कोड लिखा तो अब मैं उसको मैक में रन कर सकता हूँ। आई एम एबल टू रन द सेम कोड इन द लिनक्स इन द सोलिडिस सिस्टम। तो ठीक है, वी विल डिस्कस इन द फर्दर स्लाइड। एंड ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है यार जावा में कि एवरीथिंग इज इन जावा इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब जावा है मतलब क्लास है। साफ साफ बात है कि जावा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बिना जावा नहीं है। मतलब आप जब C+ में कोड लिखते हो तो व्हेन यू राइट कोड इन C++ you have to include some header files, then you write main function, then the code under that function. But when you are going to write the in code in Java, then you have to firstly make a class, then under that class you are going to make a main function, तब उसके अंदर आप कोड लिखते हो। तो सबसे पहले क्लास ही बनता है जावा में। किसी भी कोड को लिख लो, सबसे पहले आप क्लास बनाओगे जावा में, then you are going to make the main function, then the code under that main function। ठीक है, ये तो हो गया। सबसे पहले जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेस्ड है, ये तो मैंने बता दिया सिमिलरिटीज है। एंड दूसरा क्या है कि आप अपने जावा का कोड को एक बार रन किया किसी, आप सपोज कि मेरे पास विंडोज है, आई एम वर्किंग ऑन विंडोज नाउ। सो सपोज आई हैव कंपाइल्ड अ जावा प्रोग्राम एंड नाउ आई वांट टू रन द सेम प्रोग्राम इन द मैक सिस्टम, मैकबुक, और आई वांट टू रन द सेम प्रोग्राम इन द लिनक्स सिस्टम। सो आई एम एबल टू रन द सेम कोड दैट आई कंपाइल्ड इन माय विंडोज सिस्टम इन द मैक ओएस एंड द लिनक्स ओएस। बट ये बात आप C+ में नहीं कर सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ और कैसे होता है ये चीज, वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग स्लाइड। एंड वन एडवांटेज ऑफ टेकिंग जावा, यू आर एबल टू मेक डिफरेंट वेब एप्स, इंटरनेट एप्स। लाइक आपने सुना होगा यार कि जावा करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है इन द आई थिंक क्या बोलूँ, इंडस्ट्री वाले फील्ड में। लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एंड्रॉइड एप्स, लाइक बेसिकली दे आर nowadays they prefer for Android we prefer mainly Kotlin, but Kotlin is lot more similar. I will say Kotlin is I think similar to Java, like 80% similar to Java. So if you have basic knowledge of Java, then you are able to good to go in Kotlin and you are able to develop some Android apps. And ऐसा नहीं कि if you don't know Kotlin then you are not able to and develop Android apps in nowadays. No, Java से भी Android app कर सकते हैं। So एक एडवांटेज होता है कि Java के with learning Java you are able to develop apps, web apps, Android apps। ये तो हो गया। And last point is use community support. इसका community इतना ज़्यादा बड़ा है यार कि like if you have some error and when you write something like when you copy your error on Google, there are lots of pages. सबसे पहले तो Stack Overflow आता है। like इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा उसका कम्युनिटी बड़ा है क्योंकि जावा इज बेसिकली यूज इन इंडस्ट्री। तो जो भी इंडस्ट्री वाले लोग हैं जो भी दे आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, दे ऑल वर्क इन मेनली वर्क इन जावा बिकॉज दे हैव टू डेवलप सम एप्स, सम वेब एप्स और इंटरनेट एप्स। तो दे यूज जावा फॉर दिस। सो जावा हैज अ ह्यूज कम्युनिटी एंड मैं ये भी कह सकता हूँ कि जावा हैज बेटर एंड ग्रेटर कम्युनिटी देन C++। तो जावा का ये एक बेनिफिट होता है यार। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड सम बेसिक्स अबाउट जावा। Okay, now we will go further. I think you are not going bored. If you're going bored in any point, then just let me know. Okay, like now we will discuss in brief why and how it is different from C++. I think you all are heard about like in C++ we have pointers. Like when you are writing functions in, you have to pass a variable with ampersand, like pass by reference. I think you can say in C++. You have to like there are two, call by reference and pass by reference in C++. So when you are passing some value to a function, like there you have to use
ampersand means pass, you are passing this value by pass by reference. But in Java there are nothing like pointers. We don't have pointers in Java, and that makes Java simpler. When you are learning DSA, you don't have to worry about pointers like I'm passing this by reference or not, I'm doing it wrong or doing it right or not, I have declared pointers is right, is it right or not. So you don't have to worry about these things in Java. You just need to declare a variable and just do it. But in C++, you don't have, you have to worry about pointers like I declared the pointer, is it right or not, like I'm passing some value by reference, like is sahi hai ki nahi, you have to think about it. But like अब जो बात कर रहे हैं Java and like C++ से different कैसे है? तो in Java we don't have structures, unions and enums. Like what is structures and unions and like if you know about C language, then you in the last I think in college we discussed about the last topic of our semester C language was structure and unions. तो ये एक function ये होता है कुछ, but I'm not gonna discuss about these things here. So मतलब ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे Java में don't have structures, unions and enum data types. Okay, and the main point why Java is different from C++, Java doesn't have operator overloading. Like when we talk about object programming in C++, there is a term called operator overloading. I think we are not going to discuss right now because this is a complete different topic from the basics, because it will be discussed in the OOPS part, like object oriented programming part. When you're doing this, we will discuss later. So Java doesn't have operator overloading. It has operator overriding. Okay, it has operator overriding. Java doesn't have operator overloading. Okay. And in Java, you can't just directly convert any data type to different data type. You have to typecast it before converting to a different data type. But in C++, I think there is no need of typecasting. And the main point that makes Java different, there is garbage collection. Like suppose you have an array of size 5. Okay, it's 1, 2, 3, 4, and you need to like you are running a program in Java. You just make an array of size 5. And just you just printed hello world and return your and end your program by writing return. But you have made an array, आपने क्या किया था, एक array बनाया था, but you haven't used any time. मतलब आपने कभी इसको यूज ही नहीं किया, तो वो आपका मेमोरी वेस्ट कर रहा है यार Java में. You have made an array but you haven't used anywhere in your program in the your array in the program. तो क्या हो रहा है कि आपका फालतू का मेमोरी ले रहा है. तो जब आप अपना when you run your code in Java, so there is a garbage collector when you start running your code. There is a garbage collector when it comes in your code and checks like is there any value that is rest, there is no use of it. So Java collector क्या करेगा ना यार, उस वैल्यू को वहां से हटा देगा. like ये क्या करेगा, अपने साथ collector इसके साथ अपने साथ इसको ले जाएगा. तो ये क्या करेगा, आपको जो फालतू का मेमोरी वेस्ट हो रहा था, कुछ बाइट्स वेस्ट हो रहे थे, वो आपको बच जाएगा. तो जावा में ना हमारे पास वो नहीं होता है. वी डोंट हैव, जावा में होता है. इन सी प्लस वी डोंट हैव गार्बेज कलेक्टर. आपने अगर सी प्लस में एरे बना दिया एंड आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता है उसका, मतलब वो वहीं रहेगा. यू आर वेस्टिंग योर मेमोरी और सम बाइट्स. ओके, like now we'll talk about why C++ is platform dependent. I think you both have lots of you have heard about Java is platform independent. Like what is the term platform independent? मतलब why we say Java is platform independent and C++ is platform dependent. Like suppose like you have a code source file. What is source file? Like whenever you write a program, like you are printing something hello world in your program. Like whenever you are writing your code in your program, no, that we call a source code, source file. So जब भी आप source file बनाते हो, you save with the extension of .c or .cpp. That is called your source file. And जब भी आप you need to print something. Suppose you need to print or take input from the user in C++. Then you have to include header files. That is include stdio.h. So these are the header files. These are the header files you need to include in your program to run your program. Because without including header files, you are not able to run printf or scanf in your program. तो उसको क्या होता है यार, जब भी आप अपने कोड में ना हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हो तो वहां पे क्या होता है, जो आपका आपने लिखा ना printf और scanf, तो उस सभी का डेफिनेशन ना उन सभी का मतलब क्या बोलूंगा, डेफिनेशन आपके हेडर फाइल में स्टोर हुआ गया है. तो आपने तो लिख दिया हैश इंक्लूड stdio.h, बट उसको उसके अंदर है क्या, इसका एक्चुअली मतलब आपने जो हेडर फाइल लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है. तो वो मीनिंग आपके कोड को प्री प्रोसेसर एक नाम का चीज होता है, वो बताता है आपके कोड को कि भाई इसका ये मीनिंग है, यू हैव टू डू दिस थिंग फ्रॉम दिस थिंग्स. So you just need to include header files in your code, and preprocessor will tell you what your header files need to do it with your code. Okay, तो आपने अपना कोड लिखा, आपने हेडर फाइल्स में इंक्लूड किया. प्रीप्रोसेसर क्या करेगा, आपके जो हेडर फाइल्स है उसमें क्या करेगा, जो भी नीड है उसको, लाइक यू नीड टू यूज printf, तो printf के रिगार्डिंग जो भी इसका डेफिनेशन होगा उसको आपके कोड में लाके इंक्लूड कर देगा. ठीक है,
उस आपने जब अपने हेडर फाइल्स को अपने कोड को इंक्लूड किया ना, तो यू हैव मेड अ फाइल, आपके पास कुछ फाइल बनता है, ठीक है। अब ये फाइल क्या होता है, कंपाइल होता है। अब जब फाइल कंपाइल होता है ना यार, तो आपने लिखा था प्रिंट एफ वगैरह। अब तो प्रिंट एफ, इफ यू नो अबाउट प्रिंट एफ एंड स्कैनर, दे आर द फंक्शन, दे आर फंक्शन। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, दे आर फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन है तो कोई फंक्शन का डिफाइन भी तो होगा। अगर सपोज मैंने कोई फंक्शन बनाया सम, तो अगर मैं फंक्शन बना रहा हूँ तो इसमें मैं कुछ प्रोटोटाइप लूंगा, वेरिएबल लूंगा ए और बी, यहाँ पे सम रिटर्न करूंगा, रिटर्न कर दूंगा ए प्लस बी, यहाँ से कर दूंगा। तो प्रिंटफ और स्कैनफ ये भी एक फंक्शन है यार, ठीक है। तो जब भी आप अपने कोड में प्रिंटफ स्कैनफ लिखते हो, प्रिंटफ लिखते हो, स्कैनफ लिखते हो, सी आउट लिखते हो, सीन लिखते हो, तो उन सभी का डेफिनेशन है वो हमारे हेडर फाइल्स में इंक्लूड होता है, हेडर फाइल में इंक्लूड होता है। अब हमने क्या किया, प्री प्रोसेसर ने उसको हेडर फाइल से सारा ओपन करके जो भी नीड है हमारे कोड में, उन सभी को हमारे कोड में इंक्लूड कर दिया। अब हमने उसके बाद हमारे पास एक फाइल बना जिसको हमने कंपाइल किया। अब जब कंपाइल करते हैं ना यार, तो हमारे पास जो प्रिंटफ स्कैनर था ना, उसका एक्चुअल कोड निकल के एक लाइब्रेरी फाइल से निकल के दोनों आता है। फिर देन हमारा जो कोड लिखा था हमने वो, और जो हमारा प्रिंटफ स्कैनर पर दोनों कोड था, वो दोनों मर्ज होते हैं। और इनको मर्ज करता है कौन है, लिंकर। इनको लिंकर मर्ज करेगा एंड देन ये क्या होता है, एक एग्जीक्यूट a.exe फाइल में कन्वर्ट होते हैं, जिसको जो कि आप देखते हो ना अपना आउटपुट, वो क्या होता है, एक .exe फाइल को कंपाइल करके निकाला जाता है। बट यार दिक्कत क्या है ना यहाँ पे, कि आपने जो कंपाइल किया ना, यहाँ पे जो कंपाइल किया आपने, ये विंडोज पे कंपाइल किया है, एंड आपने इसको कंपाइल किया और लिंकर ने इसको सीधा कन्वर्ट कर दिया एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ठीक है। आपने विंडोज में कंपाइल किया, आपके पास सीधा एक आउटपुट आपको मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ इससे, कि आपने कंपाइल किया, लिंकर ने दोनों फाइल को मर्ज करके आउटपुट दे दिया, और आउटपुट वो आउटपुट दे रहा है जिससे कि आपको जो मशीन है ना, योर सिस्टम, योर मशीन लेवल कोड, योर मशीन विल अंडरस्टैंड व्हाट योर आउटपुट इज लाइक। आपने जो कन्वर्ट किया, अब वो जो कन्वर्ट किया ना आपने, वो आपको मशीन को समझ में आ रहा है कि भाई कन्वर्ट होकर क्या आया है, मुझे क्या आउटपुट देना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोलूँ तो इसको यार 0 1 के टर्म में ये कन्वर्ट कर देता है सीधा मशीन लेवल। यहाँ से कंपाइल हुआ और ये सीधा 0 1 बन के एक फाइल कुछ बन जाता है, एंड उसके बाद हमें कुछ आउटपुट आता है। सी प्लस में ये होता है। बट दिक्कत क्या होता है, द मेन प्रॉब्लम विद दिस इज यू आर कंपाइलिंग इन, इट इज विंडोज, आपने इसको विंडोज में कंपाइल किया है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू रन द सेम कोड, रन द सेम कंपाइल, रन द सेम .exe file that you have compiled in Windows, you are not able to write this run the same .exe file in Mac or Linux system, because you have compiled the code .exe file in your Windows system, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कोड आपने विंडोज में कंपाइल किया है, जो आपका .exe फाइल बना है ना, वो आप नहीं विंडोज में, सॉरी मैक में नहीं रन कर सकते हो, लिनक्स में, बिकॉज आपने उसको विंडोज में कंपाइल किया है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टिल नाउ। एंड हम देखते हैं कि यार जावा में क्या होता है। फिर जावा में क्या होता है ना यार, सॉरी जावा में ये देखो, जो मैंने बनाया यही होता है कि मैंने बोला कि .cpp फाइल बनता है, उसके बाद हमारा प्रोसेसर यहाँ से अपना हेडर फाइल्स निकालता है जो भी नीड है हमें, उसके बाद उसको कंपाइल करते हैं, देन लाइब्रेरी फाइल से प्रिंटअप स्कैनर पे जो भी हमारे कोड में इंक्लूड हुए हैं थिंग्स, वो सारे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लिंकर ना उसको कंपाइल करके, दोनों को मर्ज करके कंपाइल करके और एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, जिसको अपना आउटपुट कहते हैं। एंड वो कंपाइल जो फाइल होती है वो .exe फाइल होती है, ठीक है। एंड हमने इसको विंडोज में कंपाइल किया, तो ये विंडोज में कंपाइल किया, ये जो .exe फाइल है ना, ये विंडोज के रिस्पेक्ट में बनी गई है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब आप अगर आप इफ यू आर गोइंग टू रन द सेम .exe फाइल इन लिनक्स और मैक, देन यू आर नॉट एबल टू गेट द सेम आउटपुट, और आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट सम एरर। So this is a main problem that of the C++ compilers. So that we call C++ is a platform dependent language. Okay, and now with like why Java is platform independent? तो Java में क्या आता है, when you are writing some code that we call source file, and जब लिखते हो ना उसको यार, तो .java फाइल बनती है। तो .java फाइल जो बनी है ना, तो जब उसको कंपाइल करोगे ना यार, तो सीधा .exe फाइल, यहाँ exe फाइल नाम में कोई चीज नहीं होता जावा में, there is a नेम कॉल्ड .class फाइल, यहाँ पे .class फाइल बनती है, एंड वो सीधा ना जावा कंपाइलर, इट डजंट कन्वर्ट इट डायरेक्टली इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, इट कन्वर्ट इट इनटू अ बाइट कोड दैट मशीन इजंट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बाइट कोड। सो यहाँ पे क्या होता है कि हमने कोड लिखा, हमने कंपाइल किया, बट जावा कंपाइलर क्या करता है, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है रिस्पेक्ट ऑफ कंपाइलिंग की रिस्पेक्ट। अगर सिंपल बताता हूँ भाई, देखो कि आपने कोई कोड लिखा, है, वो क्या होता है, .java फाइल में कोड बन गया। व्हेन यू आर गोइंग टू कंपाइल इट ना, जब आप उसको कंपाइल करोगे, तो इट इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू मशीन लेवल कोड। मशीन लेवल कोड मींस, मशीन लेवल कोड क्या हो गया कि योर सिस्टम इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कोड इज ट्राइंग टू स्टेट। मतलब जैसे बोलो कि आपके पास कुछ आउटपुट आ रहा है एंड आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, बट बाइट कोड वो चीज़ नहीं है। ये C+ में होता है कि आपके जो कंपाइलर था, विंडोज का कंपाइलर, उसने सीधा कन्वर्ट कर दिया .exe फाइल में, और ये .exe फाइल आपके सिस्टम को समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बट इन जावा इट इज नॉट द सेम। इन जावा योर जावा कंपाइलर फर्स्टली कन्वर्ट योर कोड इनटू बाइट कोड। देन अब क्या होता है ये देखते हैं।
अब क्या हुआ कि आपका आपने अपना सोर्स फाइल बनाया, उसको कंपाइल किया, जावा कंपाइलर कन्वर्ट इट इनटू बाइट कोड irrespective in C++ that we are directly converting to machine level code. ये बाइट कोड बना यार। अब बाइट कोड क्या है ना कि ना आपको विंडोज को पता है, ना लिनक्स को पता है, ना मैक को पता है, ना सोलरिस को पता है। फॉर दोज हु डोंट नो सोलरिस, ये भी एक ओएस होता है लाइक मैक, लिनक्स एंड विंडोज, ठीक है। तो क्या होता है यार कि जैसे है ना, जैसे आपने क्या क्या कंपाइल किया, बाइट कोड बन गया। अब आपको आपके विंडोज को नहीं पता है कि क्या है बाइट कोड, क्या है भाई, बाइट कोड नहीं पता है, ना ही आपके ओएस को पता है, ना ही हार्डवेयर को पता है कि बाइट कोड क्या है, ना ही लिनक्स को पता है, ना ही मैक को पता है। देन यहाँ पे एक टर्म आती है जेवीएम, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब जेवीएम क्या करती है यार, जेवीएम क्या करती है कि आपने बाइट कोड तो कंपाइल करके बाइट कोड बना दिया, बट उस बाइट कोड को इट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड बाय सिस्टम ना, तभी तो वो आउटपुट दे पाएगा यार। अब जेवीएम क्या करती है ना, आपके बाइट कोड को कन्वर्ट, जेवीएम विल कन्वर्ट योर बाइट कोड इनटू अ मशीन लेवल कोड दैट योर सिस्टम विल एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि बाइट कोड आपका बना है ना, उसको जेवीएम क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल कोड में, इसीलिए और मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर देगा। इसमें क्या है कि अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत नहीं, सही बात क्या है कि विंडोज के लिए जेवीएम अलग होता है, लिनक्स के लिए लिनक्स फॉर लिनक्स वी हैव डिफरेंट जेवीएम, फॉर मैक वी हैव डिफरेंट जेवीएम, फॉर सोलरिस वी हैव डिफरेंट जेवीएम, लाइक फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव डिफरेंट जेवीएम्स, ओके। इससे फायदा क्या हुआ, लाइक व्हाट इज द बेनिफिट फॉर हैविंग डिफरेंट जेवीएम फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द बाइट कोड फॉर एनी ऑफ द ओएस, हम किसी भी ओएस के लिए अपना बाइट कोड चेंज नहीं कर रहे हैं। द बाइट कोड इज सेम फॉर ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू गिव टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट भाई ये ले कि इसको जेवीएम में डाल, कन्वर्ट कर दे। सो बाइट कोड इज गोइंग टू सेम फॉर ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जेवीएम अब मेन काम करता है, वो जेवीएम क्या है जावा में, जेवीएम विल कन्वर्ट द बाइट कोड डिपेंडेंट अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू आर यूजिंग। Like I'm using Windows, so if I convert my bytecode in my Windows system, then my JVM will convert my bytecode related to Windows, okay? But your bytecode is gonna same for all the OS. इसलिए क्या बोलते हैं कि आप अपने write once, इसलिए मैंने बोला था write once write anywhere, यही फंडा है जावा का कि आपने एक बार लिखा आपने कोड, अब उसको आप हर सिस्टम पे रन कर सकते हो यार, ठीक है। तो बाइट कोड इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीवेयर। एंड इन द कमिंग सेशंस आई एम गोइंग टू शो यू व्हेन, जब मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ एरेज वगैरह टॉपिक, तो अभी भी मैं आपको नॉर्मल जब इसके पीपीटी खत्म होगा, देन आई एम गोइंग टू शो यू सम बेसिक इनपुट आउटपुट इन जावा। तो मैं उस समय थोड़ा अगर ट्राई करूंगा, अगर एक लिस्ट में होगा तो मैं अब दिखा दूंगा वहाँ पे, बट श्योर है कि जब मैं व्हेन आई एम गोइंग टू टीच एरे, देन आई विल शो यू अबाउट, आई विल टेल यू मोर अबाउट जेवीएम। बट अभी के लिए इतना काफी है कि यार आपको ये समझ में आ गया आपको मतलब जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज बाइट कोड कभी चेंज नहीं होता, वहाँ पे चेंज होता है जेवीएम। जेवीएम क्या होता है, हर ओएस के लिए अलग अलग जेवीएम बना है, विंडोज के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है। तो आप ना क्या करते हो, अपने बाइट कोड को अपने जेवीएम को देते हो। अब जेवीएम क्या है, जेवीएम तो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है, ठीक है। तो विंडोज में अगर इंस्टॉल है जेवीएम, तो विंडोज के रिगार्डिंग आपके कोड को कन्वर्ट कर देगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, नाउ यू आर क्लियर विथ व्हाई C++ is platform dependent, why Java is platform independent, okay। अब हम देखते हैं कि जावा में प्रिंट कैसे करते हैं यार। अगर आपको बोले कि आई हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन जावा, लाइक यू हैव टू राइट अ बेसिक प्रोग्राम इन जावा, देन व्हाट यू गोना डू। मैंने बताया कि जावा में लाइक एवरीथिंग इज जावा इज इन फॉर्म ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब आप लिखते हो C++ में, अगर सपोज यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम इन C++, सो फर्स्टली यू नीड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स, देन यू नीड टू राइट इंट मेन और void main, व्हाट यू, अब इसके अंदर अपना कोड लिखते हो आप, यही है। बट इन जावा we don't need to add hash include, we need to add header files, okay। For header files for Java, in what we do, we just import the header files, like यहाँ पे क्या होता है, we need to import header files, packages। In C++ we need to include header files, but in Java we are importing packages। and what are packages, मतलब when I'm going to teach you about scanner, then I will tell you more about packages, ठीक है। तो ये समझ लो अभी के लिए कि हम जावा में header files include नहीं करते हैं, we just import some package that we are going to use for our input or input printing and some other functionalities, okay। And for just directly writing int main, we are going to write a class, it is a class name, okay। ये class name है, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि what you're going to name it, like here it is written as hello world, बट आप अपना नाम कुछ भी नाम रख सकते हो। बट ये दिक्कत है कि जो भी अपना क्लास नेम रखोगे ना यार, वो आपका पैकेज के नेम से सेम होना चाहिए। एंड वाटर पैकेज, व्हेन आई गोइंग टू टीच यू इन द इक्लिप्स, तब मैं दिखाऊंगा कि वाटर पैकेज क्या है। अभी समझ लो कि जावा में इतना मैं बता रहा हूँ कि जावा में बेसिस क्या है, कि जावा में सबसे पहले आपको एक क्लास बनानी पड़ती है, उसके अंदर एक मेन फंक्शन बनता है, ठीक है। और ये क्या लिखा है स्ट्रिंग आर्स, इस पे अभी एम्फसाइज नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ये अलग ही टॉपिक है यार। ये कमांड, इसको हम लोग कहते हैं कमांड लाइन इनपुट, कमांड लाइन आर्गूमेंट, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं अभी,
आप इतना समझ लो कि जावा में जब भी करोगे ना, आप जब भी कोड करना स्टार्ट करोगे तो सी प्लस में कैसे करते हो यार, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट सम कोड इन सी प्लस, सबसे पहले आपको यू आर गोइंग टू इंक्लूड हेडर फाइल्स, देन यू आर राइटिंग मेन एंड हो जाता है, उससे कोड हो जाता है आपका। बट इन जावा यू डोंट नीड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स। सबसे पहले अपना क्लास डिक्लेयर कर दो, एक नॉर्मल क्लास जैसे सी प्लस में करते हो वो क्लास लिख लो, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, जो भी नाम आपको देना है वो दे दो। उसके बाद मेन फंक्शन बना दो। मेन, अगर आपको मेन फंक्शन बनाना तो यू आर, अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे लिखा है पब्लिक स्टैटिक। आप पब्लिक स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं यार? अगर आपने कोई नॉर्मल फंक्शन बनाया यहाँ पे, ठीक है, अगर आप सीपी में कोई करते हो, फंक्शन नेम कर दो यहाँ पे एंड इसको कॉल कर दो नीचे से। मैंने कर दिया, नेम कर दिया। अब क्या करो ना, आपने यहाँ से कॉल किया नेम, ये ना एक क्लास के अंदर नहीं है यार, तो इसको फंक्शन करते हैं। बट बेसिकली जो भी फंक्शन क्लास के अंदर बना है वी कॉल इट एज अ मेथड, ठीक है, वो क्लास के अंदर बना है इसलिए मेथड करते हैं। बट दोनों का मीनिंग सेम ही है, वो भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, बट ये क्या है, क्लास के अंदर बना हुआ है, सो वी कॉल इट एज अ मेथड, ठीक है। तो जावा में मेथड कहना ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, ठीक है। बस इतना समझ लो कि पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड ये हो गया मेन लाइन, मतलब मेन के लिए ये हो गया सिंटैक्स, और प्रिंट करते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू शो यू इन द कंपाइलर आफ्टर द 50 फिनिशेस, सो डोंट वरी अबाउट इट। कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, सो मैं दिखा दूंगा अभी। ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि जावा कोड, पहले जावा कोड बनता है, कंपाइलर बनता है, देन बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं उसको, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड अब हम देखते हैं कि यार हमने जो अपना मेन अभी कोड लिखा था ना, उसमें कुछ कुछ चीजें थी यार। यहाँ पे देखो अगर आप, तो यहाँ पे ना ये सब चीज थी, मतलब पब्लिक था, क्लास था, ये वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये सब है क्या एक्चुअली, ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम लोग। एक क्लास तो वही है कि कीवर्ड होता है कि, तो आई थिंक एवरीवन नोज, इफ यू हैव लर्न सी प्लस प्लस इन सम एक्सटेंट, तो आपको पता होगा क्लास क्या होता है। वी जस्ट नीड टू डिक्लेयर अ क्लास इन जावा। पब्लिक क्या है यार, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। अगर आपने अपने मेन फंक्शन को पब्लिक नहीं दिया ना, तो आपने एक क्लास बनाया, क्लास हेलो वर्ल्ड, उसके नीचे आपने मेन बना दिया, सीधा मेन बना दिया और यहाँ से कॉल कर रहे हो। बट अगर आपने सीधा इसको पब्लिक नहीं किया ना यार, तो ये क्या एक्सेस मॉडिफायर है, तो इसको आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये थोड़ा ओप्स वाला पार्ट है, या ये दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो वी आर नॉट गोइंग टू एम्फसाइज इन दीस थिंग बिकॉज़ वी आर हियर टू लर्न डीएसए, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नॉट जावा, नॉट सी प्लस प्लस, ओके। एंड यहाँ वॉइड का क्या है कि वॉइड रिटर्न टाइप होता है कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। मेन डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम क्या है, आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो बेसिक है, पता होगा। एंड मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग आर्स क्या होता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है यार, कि वो अलग चीज है, वो वी विल डिस्कस व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लाइक हमने वहाँ प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड, तो जावा में अगर आप सी प्लस से प्रिंट करते हो ना, तो हमें लिखना पड़ता है सी आउट, नॉर्मली हेलो वर्ल्ड लिख दो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट जावा में हमें लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फॉर न्यू लाइन लिखना पड़ता है, ओके। नाउ see how we are going to take input in Java. Okay, so forward about this thing, right? तो मैंने बताया कि we have to first declare a class and class name that you are going to give. Under that you are going to give a main. Don't worry about it. जब भी आप कोड करोगे ना, तो आपको ये दोनों चीज हमेशा से पहले से मिली होती है, आपको ये हमेशा ये कभी लिखना नहीं पड़ेगा। लाइक इन द मॉडर्न कंपाइलर्स you are already given with those two things like class and main. Okay, you just need to write your logic here. एंड देखो यार कि अब हमने क्लास बना लिया, मेन बना लिया, अब हमें इनपुट लेना है यहाँ पे। तो इनपुट लेने यार कि क्लास होता है, एक क्लास होती है, हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ये स्कैनर एक क्लास है, ठीक है। और आप जब भी, अगर आपने सीक्वेंस से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, तो हम जब भी कोई क्लास बनाते हैं ना, तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते हैं कि हम उसके फंक्शन को एक्सेस कर पाएं। तो हमें ना अपने ये लिखना पड़ता है स्कैनर, SCN क्या, स्कैनर एक क्लास है, SCN उसका ऑब्जेक्ट है, एंड हमने क्या किया, क्लास बनाया, एंड हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया SCN, जो कि ये न्यू कर रहा है। हमने अपना स्कैनर क्लास इंपोर्ट किया और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया SCN। और अब जावा में ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आउट डॉट इन। सिंटैक्स से मत ध्यान दो यार, मतलब हमें वी जस्ट नीड टू कोड, हमें जावा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू इम्परसाइज कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप इतना समझ लो कि जावा में इनपुट कैसे लेते हैं, तो नॉर्मल। और इसके लिए मैंने बताया कि हमारे पास जावा में कोई हेडर फाइल्स नहीं होता है, तो हमें ना ये स्कैनर एक, मैंने बताया कि जावा में हर चीज क्लास होती है, और ये भी एक क्लास है, तो हमें इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एक पैकेज होता है जावा लैंग्वेज, उसके अंदर एक पैकेज होता है यूटिल, उसके यूटिल पैकेज के अंदर एक स्कैनर क्लास बनी होती है, ठीक है। तो इससे अच्छा एंड डोंट वरी, मैं इसके बाद मैंने बोला कि मैं पीपी खत्म होने के बाद ही आपको कोड करके दिखाने वाला हूँ चीज। तो डोंट वरी अबाउट इट, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, मैं दिखा रहा हूँ इसके बाद में, जस्ट पीपीटी खत्म हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर आपको ये नहीं लिखना ना, मतलब जैसे अगर आप मान लो कि आपने कोई एरे लिस्ट इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम में, अगर आप एरे लिस्ट को चाहते हो कि यार बार मुझे लिखना, मैंने लिखा स्कैनर लिख लिया, अब मुझे एरे लिस्ट करना है, तो फिर से मैं लिखूँ क्या, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज डॉट एरे लिस्ट। नहीं, इससे अच्छा क्या लिख दो आप, इंपोर्ट
java.util.start स्टार क्या करेगा ना यार, जावा आपके यूटिल पैकेज के अंदर जो भी फंक्शन है ना सारे इंपोर्ट कर देगा। तो हम यही प्रेफर करेंगे कि हम सीधा स्टार लिखें, जिससे हम जो भी फंक्शन यूज करें हमें एक ही बार सारा मिल जाए, हमें बार बार इसे इंपोर्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो इनपुट लेने के लिए बता दिया, स्कैनर यूज होता है। अब मैं दिखा दूंगा कैसे यूज होता है, वो करना मैं बता दूंगा आपको। एंड आप अगर आप आपने बोला कि इनपुट, ठीक है यार इनपुट, तो अगर आप बोलोगे ठीक है सी मतलब सी प्लस में हमें तो सी इन करना पड़ता है इनपुट लेने के लिए, बट सब यहाँ पे जावा में दिक्कत है कि आप सिर्फ स्कैनर लिख दोगे ना, उससे इनपुट नहीं ले सकते हैं। हमें ना डिफरेंट डेटा टाइप के लिए डिफरेंट इनपुट टाइप्स है हमारे पास। जैसे इंट के लिए क्या होता है, नेक्स्ट इंट लिखना पड़ता है। जैसे आपने लिखा हमें लेना है एक नंबर लेना है एन इनपुट, हम लिखेंगे इंट एन इक्वल टू स्कैनर, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। तो अब यहाँ पे ये इनपुट एक्सेस करेगा हमारे कमांड लाइन से। ठीक है, और ऐसे ही बूलियन के लिए होता है, बाइट के लिए होता है, डबल के लिए, फ्लोट के लिए ये स्ट्रिंग। और हमें जब स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो हमें नेक्स्ट लाइन करना पड़ता है, हम सीधा नेक्स्ट लिखेंगे। अब मतलब दो होता है, एक नेक्स्ट लाइन होता है, नेक्स्ट होता है, तो डिस्कस कर लेंगे बाद में, जब भी हम कोड करेंगे तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे, जब भी नीड पड़ेगी तो नेक्स्ट डॉट। तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं कोड करके दिखा दूंगा कैसे होता है ये चीज। Hello, Abhiraj. Hello. या Let's take some doubt in yeah, case they have sure. and proceed further. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Nisha, can you tell me about the doubts? Like, I don't know, like, I need to scroll up and down for this. Okay, yeah, I'm going to provide all the PPTs that we are going to discuss here. Sir, we have only one webinar. No, we are going to discuss, cover all the topics of DSA. So this is just an introductory session. ठीक है, ये just intro है। इसके बाद we will going to cover array and searching, sorting and all the DSA in the coming weeks. Okay. Yeah, I'm not like I'm not. Yeah, Nisa. Nisa, you're saying something? Yeah. Okay. So I was saying, guys, we कि नेक्स्ट वीक में हम लोग जाने वाले हैं, क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो वो हम लोग Nisa, your network is not good. I think Supriya. Hello, Nisa. Are you audible now? Hello. Am I audible? Hello. Yeah. You're audible. Okay. Yeah, So, if you have any doubt till now in Abhiraj's presentation, make sure to do doubts in the chat section. Yeah, if you have any doubt, just ask a doubt, because I am sharing my PPT, so I'm not able to view my Google Meet screen. So you can ask a doubt now. Exactly. Also, guys, tell you what we'll be covering in this week. So we'll give a presentation about those topics at the end of this session. Okay, let's carry on. In case they have doubt. Okay, if you don't have any doubt, then I'm going to continue. Yeah, I think Sriyanshu, I have already discussed in that, like in C++, when we compile our code, then it directly convert into .exe file. What is .exe file? .exe file ये होता है ना भाई कि your machine is able to understand the code that you have compiled. Like in compile means .exe file. Your machine will able to understand the .exe file. But in Java, when we convert your code into byte code, like your machine is not able to understand what is byte code. So for this we need JVM, like Java Virtual Machine. तो Java Virtual Machine बताएगा कि ये बाइट कोड में एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है। ओके, या दुर्गा, यू आर राइट। ओके, आई थिंक सो वी कैन कंटिन्यू, निशा। Okay guys, so if you don't have any doubt, I'm continuing going to I'm continuing my session. Okay, so we were here, I think. Yeah, this was done. Okay, so suppose I already tell you that if we have to take integer as input, so we just write int n. Int is int is like a small int. Okay, it's not int n. Okay, int n, and we need to take a integer as an input. So we have made imported our class scanner. We have made it an object of class scanner,
Now अब हम क्या करेंगे, we have made an object of class scanner. Now we are going to use the object to access the functionality of a scanner class. ठीक है, these the next int, next line, next double, they all are declared in the scanner class. So we need, a scanner is a class, and they all are function, next line, next int, next double, they all are declared in the scanner class. So whenever we need to access something from a class, we need to first access the first we need to make an object of that class. Then with the help of that object, we are going to access the functionality of the class. So हमने क्या किया, सबसे पहले अपना scanner class बनाया, then हमने उसका object बनाया scn, then scn के help से हम उसका function एक्सेस कर रहे हैं. नेक्स्ट इंट क्या करता है, इट विल बी नेक्स्ट इंट विल हेल्प यू टू टेक इनपुट, टेक इंटीजर एज अ इनपुट. नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग, we next line will help you to take input, take string as an input. Okay, or same as double, we declare double and extend dot next double. So इससे क्या होगा कि अब you are going to take double as an input. ठीक है. And now for printing in Java, just declare the class main class. The class name is main here, don't confuse about with that. We declared a class, we declared our main function. And now for printing, so I think I already told you about, for printing in Java we need to write system.out.print. Okay, and this is, and why, and if you look here, we haven't imported anything because system.out.print ये है ना, ये .io package में आता है, .input output package में आता है. So we don't need to import system here. Okay, system.out.print, it will work fine without importing anything. तो ठीक है, तो हमने क्या किया, system.out.print लिखा है and hello world print हो गया है. System.out.print under bracket with commas under that, you just need to print, write in that your print, जो आपको प्रिंट करना है उसके अंदर लिख दो, वो प्रिंट हो जाएगा. एंड हमने ये लिखा है system.out.print. प्रिंट से क्या होता है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है. जैसे आप C+ में क्या लिखते हो, सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखते हो ना यहाँ पे, उससे क्या होगा, हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा. ये नॉर्मल एक हेलो प्रिंट कर देगा सी आउट में. बट सपोज वी नीड टू प्रिंट इन डिफरेंट लाइन, so for that we use print ln, system.out.print ln means next line. Like in C++ we use cout and del use करते हैं ना for next lines. तो हमने यहाँ लिखा है print ln hello world, तो hello world print कर दिया. We again write it system.out.print ln hello world again. उससे क्या हुआ, next line change हो गया. With the help of ln we are able to change our line. Okay, तो ये था printing के लिए, input output के लिए ये था. I think I'm done with it. Now if you any doubt in the input output session or anything in PPT, you can ask. After that, I'm going to show you in the online compiler like how to take input or how to print something in Java. अगर कोई भी डाउट है तो you can ask it out. Like if you have any doubt regarding the concepts that I've just spoken, and you have any doubt about input output, what print ln, yeah you can use \n, like you just जैसे आप C+ में यूज करते थे \n, you can also use \n here for printing, for print next line. Okay, yeah Nisa, we have also printf in Java, but we are not going to discuss because like उसका कोई use नहीं है. Like we always use print ln or print in Java, so I think it will fine. We don't need to discuss about printf in Java. So if you don't have any doubt, so just I'm going to like just one thing, like just 5 minutes more. मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि how we are going to print something in Java or how we are going to take input. Okay. So this is an online compiler. I'm going to मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा. So see when you open this compiler, आपको ये पहले से आपको पहले से ये मेन क्लास बना होगा और मेन भी बना होगा. ठीक है. So let me hide this. तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है system.out.print. मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से एंड खुद से लिख देता हूँ एक बार, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. System.out. Firstly we will look at print. रन करते हैं इसको. See we are getting hello. We just use system.out.print. We are getting hello here. And now I'm going to write system.out.print ln
Okay. Hello again. Now I'm going to change here from print to println. Okay. So see, we are getting the outputs in different lines. See, hello and hello again. It's same as C++, but syntax is bit lengthier. So okay, ठीक है. And यहाँ पे क्या होता है? Now we need to take input from user. So let me leave it. So first, for taking input, we need to make a scanner class. A scanner, we have made it our class scanner, and now we need to make an object of our scanner class scanner. Now for whenever we make object, we need to make it new, a scanner. Now we here in bracket we need to write system.out.system.in. Okay, don't worry about why we are writing system.in. They all are the object oriented programming parts, so we are not going to emphasize on this. Okay, so हमने क्या किया, अपना स्कैनर क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया एंड इसको न्यू कर दिया सिर्फ, एंड हमने इसको बना लिया भी, बट हमारे प्रोग्राम में आवर कोड डजंट नो हाउ टू लाइक व्हाट इज स्कैनर, सो वी नीड टू इंपोर्ट इट. इंपोर्ट java.util.scanner. Yeah, ठीक है. And now we need to take it integer as an input. So we just, for taking integer as an input, we need to write the variable n. We need to take input as n. Just write the object name that you have made it here, scn. Yeah, you can write it in anything. Like I have written scn. You can write use your own name, something else. Like it depends upon you. Like I have written int n scn dot next int. It will take a integer input. Okay, let me show you. Okay, I haven't printed this. Okay, remove this hello. Just print the n. And for concatenation in Java, we use plus. We use plus here. Okay, give me a second. Getting this. Yeah, need to give an input integer. See, for concatenation in Java we need to use n. Like you have आपने क्या किया, n लिख दिया, एंड आपके पास एक वेरिएबल है, ये आपको प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, एंड उसके बाद उसका वैल्यू प्रिंट कराना है. तो जस्ट ऐड अ प्लस साइन देयर. ओके, इससे क्या हुआ, आपने n प्रिंट करा दिया, उसके बाद आपने जो वैल्यू है वो प्रिंट करा दिया. 4, आपने सबसे पहले 4 इनपुट लिया, उसके बाद n दिया, देन यू हैव राइटेड n इस वैल्यू, देन आपने हेलो अगेन प्रिंट कर दिया. सो यही था जावा यार. इससे अगर आपको ये समझ में आ गया कि इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे लेना है, तो इट विल बी इनफ फॉर आवर अपकमिंग सेशंस. ओके, so thank you for this. Yeah, if you have any doubt regarding that, you can ask your doubt now. Nisa, are you there? Nisa? Yes, Abhiraj. Yes. Yeah, I'm done. Okay. So Priya, are you there? All right, Abhiraj, thank you so much for giving such a fresh start and a mind-blowing start to the Java basics. तो आई थिंक जो CPP यूजर्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि जावा कैसे वर्क करता है. एंड इट्स नॉट कि सिर्फ जावा यूजर्स ही इसको समझे, ये एक बेसिक सी चीज थी जो कि सबको समझना चाहिए. इसलिए हमने लैंग्वेज पे नहीं किया है फोकस कि यू जस्ट हैव टू लर्न बोथ द लैंग्वेजेस. वी जस्ट कवर द बेसिक्स सो दैट कि आप दोनों लैंग्वेज यूज कर रहे हो या फिर आप कोई एक लैंग्वेज कर रहे हो, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए. तो थैंक यू अभिराज फॉर शेयरिंग द PPT. Yeah, thank you Supriya. Yeah, I'm going to share the PPT in groups. Don't worry about that. हम लोग सारा PPT शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, so don't worry about that. ओके, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस सेशन के लास्ट तक मिल जाएगा. So guys, let's move ahead. So now we are going to cover the CPP basics, okay? To all the CPP users who are using CPP. So मैं कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर रही हूँ, मैं आपको लैंग्वेज नहीं बता रही हूँ, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू लैंग्वेज द बेसिक्स, ओके? आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू द थिंग्स विच आर नॉट मोस्टली डिस्कस्ड, ओके? जब भी आप लैंग्वेज सीखते हो ना, तो आपको ये मोस्टली ये चीजें नहीं बताई जाती हैं. आपको बस बोला जाता है कि आप ये चीज लिख लो, ठीक है, याद कर लो कि हाँ ये चीजें लिखी जाती हैं, और फिर आप अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है?
तो मैं मोस्टली वो चीजें डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जब आप एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर आप कोड कर रहे हो ना, आपको आप जो भी लाइन लिख रहे हो ना, उसके पीछे की लॉजिक आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो आपके इंटरव्यूज होते हैं उसमें हो सकता है कि आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर नहीं हो, बट आप जितना लिख रहे हो आपको उतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा हो गया सीपीपी का जो एक बेसिक स्केलेटन होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लिखते हैं, ठीक है। ये 2 लाइनें हम इंक्लूड करते हैं, एक हेडर फाइल डालते हैं, एक ये यूजिंग नेम स्पेस वाला फाइल ये लाइन डालते हैं, और फिर हम मेन लिख करके अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक स्केलेटन हो गया। बट oh, I'm so sorry, I have not shared my screen. Oh, I'm so sorry guys, let me share Yeah, my now you screen. can see it now, no problem, Supriya. Okay, I'm so sorry for that. Abhiraj, let me know if my screen is visible and Yeah, am I audible? yeah, I'm visible, you're audible, but just share the PPT. Okay, I'm sharing it. Yeah, Okay. yeah, now Is it visible? Yeah, it's visible now. Okay. All right. So we just include these 2 lines, okay? The header one and this using namespace std, and then we start writing our code from main, okay? So firstly, let's understand ki what is this 2 line, okay? What is the meaning? What is the logic behind writing these 2 lines? Hashtag include IO stream and using namespace std, okay? So for that, let me use my whiteboard. Okay. Is it visible, Abhiraj, my whiteboard? Yeah, it's visible. Okay. All right. So what I was saying that we write mostly hashtag include IO stream, right? And then we write a line using namespace std. Okay. So we just write these 2 lines. तो देखो होता क्या है ना, कि जब हम ये लाइन इंक्लूड करते हैं हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो हमारा जैसे समझो कि कंपाइलर है, ठीक है। तो उस कंपाइलर के अंदर, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि समझाने के लिए, कि जैसे समझ लो कि ये आपका एक फाइल है, ठीक है। दिस इज अ फाइल विच यू आर क्रिएटिंग। जैसे कि आप अपनी सीपीपी फाइल बनाते हो, वैसे ही अगर आप डॉट एच एक्सटेंशन के साथ अगर आप कोई फाइल बनाते हो ना, ये बाय डिफॉल्ट डॉट एच एक्सटेंशन के साथ अगर आप फाइल बनाते हो, तो वो आपकी हेडर फाइल होती है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि चलो एक मैंने फाइल बना दी आईओ स्ट्रीम नाम की, ठीक है। ये मैंने फाइल बना दी आईओ स्ट्रीम नाम की, और इसके अंदर मैंने कुछ फंक्शंस, कुछ प्रोटोटाइप्स के डिक्लेरेशन दे दिए मैंने। अभी क्या होता है कि जैसे ये हेडर फाइल के अंदर होता क्या है, कि जैसे इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस, जैसे कि आप कोई भी पहले आप वेरिएबल बनाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हो, उसको इनिशियलाइज करते हो, है ना। अगर आप कोड करते हो, आपको पता है कि जैसे आपको अगर कोई इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाना है, इंट एक्स इज इक्वल टू 5, तो पहले आप इसको क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो, है ना। विदाउट डिक्लेरेशन ये आपको एरर दे देता है। आपने इसको डिक्लेयर किया, फिर आप इसको इनिशियलाइज कर देते हो, वही करते हो मोस्टली, ठीक है। तो बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसे कि जो चीजें आप जो प्री डिफाइंड है वो चीजें यूज करते हो, तो उसको तो आप कभी भी इनिशियलाइज नहीं करते हो, है ना, या फिर आप उसको डिक्लेयर नहीं करते हो। तो वो चीजें कहाँ होती हैं, वो हमारे हेडर फाइल में पहले से ही प्री डिक्लेयर्ड होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आईओ स्ट्रीम में आपके बहुत सारे प्रोटोटाइप्स के डिक्लेरेशन होते हैं। आई रिपीट, डिक्लेरेशंस होते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस नहीं बोल रही हूं मैं, इसमें हेडर फाइल के अंदर डिक्लेरेशंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारे जो भी मेरे डेटा टाइप्स हैं या फिर जो भी फंक्शंस मुझे यूज करने हैं, ठीक है, तो मैंने इसके अंदर बहुत सारे चीजों को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस यूजिंग नेमस्पेस std? तो ये जो हमारी जो हेडर फाइल होती है ना, इसके अंदर हम वैसे ही नहीं डाल देते हैं ये डिक्लेरेशंस को, ठीक है। हम इसके अंदर नेम स्पेसेस बना करके, ठीक है। आई नो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इट्स जस्ट अ बेसिक, ठीक है। आप बस इसको समझो, ठीक है, कि ये काम कैसे करता है। तो देखो, ये जैसे कि मैंने क्या किया, एक नेम स्पेस करके ये कीवर्ड यूज किया मैंने, और मैंने इसका नेम स्पेस डाल दिया, ठीक है। जैसे मैंने अभी जो आईओ स्ट्रीम यूज किया है, तो उसका नेम स्पेस पहले से क्या डिफाइंड है, std, ठीक है। और इस std के अंदर क्या किया मैंने, कुछ प्रोटोटाइप्स का डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है। जैसे std के अंदर क्या होता है, cin होता है, ठीक है। आप खुद का भी नेम स्पेस बना सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगी कि आप कैसे खुद का नेम स्पेसेस बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल मैंने
पहले तो मैंने एक डिक्लेरेशन बनाया एक फाइल में, ठीक है। उस डिक्लेरेशन को मैंने क्या किया, नेम स्पेसेस के अंदर डाल दिया, ठीक है। नेम स्पेसेस तो और भी यूज होते हैं, नॉट कि मतलब सिर्फ आप डिक्लेरेशन को एक कंटेनर में डाल दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप बहुत सारे यूजेस होते हैं, मैं बताऊंगी आपको। बट अभी के लिए आप क्या समझो कि एक नेम स्पेस करके मैंने एक जो फाइल बनाया ना, तो उसके अंदर मैंने एक डिक्लेरेशन का पूरा एक कंटेनर हो गया वो, ठीक है। मतलब जो भी चीजें मैं यूज कर रही हूँ उसको मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया। इसकी जो डेफिनेशंस होती है ना इस प्रोटोटाइप की, वो लाइब्रेरी फाइल्स में होती है, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, हेडर फाइल्स के अंदर हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने कर दिया। अभी देखो, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, ये वाला जो लाइन है ना, तो अगर आप ये इंक्लूड नहीं करते हो और अगर आप सीधे अगर टाइप करना चाहो कि भाई मुझे ये सी आउट करके दे दे, ये ठीक है, सी आउट कर दो मेरा स्क्रीन पे कुछ भी, तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने बोला सी आउट। अभी तो इसको पता ही नहीं कि ये सी आउट है क्या, इसको नहीं पता है, ठीक है। जैसे देखो, मैं आपको एडिटर में दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये नेम इंक्लूड कर रही हूँ, मैं आईओ स्ट्रीम, ठीक है। तो मैं यहाँ आईओ स्ट्रीम लिखा मैंने, ठीक है। अभी मैं अभी के लिए ये लाइन हटा दे रही हूँ, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हटा दिया मैंने। अभी रहा जिसमें एडिटर विजिबल, या इट्स विजिबल। ओके ओके ओके। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, ये लाइन को मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। मुझे ये लाइन अभी इग्नोर करके मैंने बोला कंपाइलर को कि कमेंट कर दिया मैंने, ये लाइन मुझे इग्नोर कर दो, ठीक है। अभी मैं क्या प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ, चलो सी आउट करती हूँ मैं, क्या हेलो वर्ल्ड तो होता है भाई, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, चलो। तो मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो लेट मी कंपाइल। तो मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ। अभी देखो क्या हो गया, ये बोल रहे अरे सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। बट ऐसा क्यों? मैंने तो किया है ना यहाँ पे आईओ स्ट्रीम, ठीक है। बट अब आईओ स्ट्रीम को कैसे पता है कि ये कौन से नेम स्पेस के अंदर ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। आईओ स्ट्रीम के अंदर तो बहुत सारी नेम स्पेसेस है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से नेम स्पेस के अंदर ये डिक्लेरेशन है सी आउट की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे एसटीडी और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे भी लगा सकते हो सिंपली। या फिर आप क्या करो, अगर आप इसको ये वाला लाइन यूज करना चाहते हो, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, आप ये यूज कर लो सिंपली। तो आपको कोड के दौरान आपको ये एसटीडी और ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, चलो अभी मैं कमेंट कर रही हूँ, अभी मैं फिर से इसको प्रिंट करके देख रही हूँ, ठीक है। अभी देखो ये तो प्रिंट हो गया है ना। अभी तो मैंने ये लाइन इंक्लूड नहीं करा था, बट ये प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे दे दिया है कि चलो ठीक है, ये कहाँ से लाना है, एसटीडी में जो सी आउट डिफाइंड है ना, वहां से इसको ला करके दो, ठीक है। तो अभी मैं इसको, हम मोस्टली क्योंकि कोड के दौरान इतना लिखना ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली अपना नेम स्पेस यहाँ पे डाल देते हैं कि भाई जहां पे भी जरूरत पड़ेगी तो तुम ये एसटीडी नेम स्पेस से मेरे को ये ला करके दे दो, एरर मत देना मुझे, ठीक है। तो कंपाइलर ये समझ जाता है कि अरे ये तो डिफाइंड है ना पहले, ये तो पहले ही डिक्लेयर्ड है, तो मुझे इसको एरर नहीं देना है, ठीक है, वो समझ जाता है। चलो अभी मैं बताती हूँ कि आप खुद के नेम स्पेसेस कैसे बना सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया जो डिफाइंड है, ठीक है। चलो मैंने बोला कि मुझे खुद का एक नेम स्पेस बना दो। मैंने क्या बोला कि एक नेम स्पेस करके आप कीवर्ड यूज करो और कुछ भी नाम दे दो, और जैसे मैं क्या दे दूं, बोलो डीएसए दे दूं, चलो डीएसए दे देते। तो मैंने डीएसए दे दिया इस नेम स्पेस का, और इसके अंदर मैंने एक डिफाइन कर दिया, मतलब सॉरी डिक्लेयर कर दिया कोई एक वेरिएबल, समझ लो इंट एक्स मैंने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे मोस्टली एंडल लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि वो साफ सुथरा दिखे, एंडल लगा दिया मैंने, एंडल नेक्स्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अब मैं बोल रही हूँ इंडेक्स तो मैंने कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर सिंपली बोलूँ कि x इज इक्वल टू 5 कर दो, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया, और मैं बोल रही हूँ कि मुझे सी आउट करके ला दो x, मुझे सी आउट कर दो x, ठीक है। अब देखो ये क्या देगा, x प्रिंट करना चाहिए, बट ये बोल रहा है कि नहीं, x तो डिक्लेयर्ड ही नहीं था स्कोप में। हाँ भाई सही है, यहाँ पे इसको तो डेफिनेशन मैंने दी नहीं है, मैंने नेम स्पेस में डाला है, बट यहाँ पे इसको पता कैसे चलेगा कि ये नेम स्पेस में है, ठीक है। तो मैंने सिमिलरली क्या किया, डीएसए यहाँ पे नेम स्पेस डाला, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और अब मैं प्रिंट करके देखती हूँ क्या ये हो रहा है क्या। ओके अगेन हियर आल्सो वी हैव टू प्रिंट। आप समझ रहे हो, मतलब जहां पे भी आप वो यूज करोगे ना, तो आपको नेम स्पेसेस वाला वो डालना पड़ेगा और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ। तो अब ये देखो, अब ये हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड एंड 5। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि चलो ठीक है, मुझे हर जगह पे ये डीएसए और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगाना है, मुझे यूजिंग नेम स्पेस करके दो और मुझे यहाँ पे डीएसए कर दो, ठीक है। मैंने जैसे एसटीडी किया था, मैंने बोला कि यूजिंग नेम स्पेस डीएसए कर दो मेरा,
ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको डी से नहीं लगाऊंगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कोड मुझे बड़ा लिखना है और मैं इतनी चीजें नहीं करूंगी बार बार। चलो ठीक है, तो ये देखो अभी भी ये प्रिंट हो रहा है, समझ रहे हो? आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना? क्योंकि अभी इससे ज्यादा इजी वे में मैं नहीं बता पाऊंगी इसको, ये मतलब काफी इजी, आप समझ जाओगे। सिंपली आप एक हेडर फाइल अभी क्या कर सकते हो, जैसे आपको खुद का एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि आपको खुद के डिक्लेरेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, वैसे ही आप नेम स्पेसेस बना करके आप बहुत सारे नेम स्पेसेस जो भी आपको वेरिएबल्स फंक्शंस चाहिए आप उसको डिक्लेयर कर दो और उसको सेव कर लो एज अ हेडर फाइल डॉट एच एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। और उसको आप अपने कोड में यूज कर लो, जैसे आप इसको इंक्लूड कर रहे हो तो वैसे ही आप अपने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लो और जो भी नेम स्पेसेस आपको यूज करना है वो नेम स्पेस दे करके और आप सीधे अपना प्रोग्राम लिख लो, ठीक है। अभी आपको ये ज्यादा जरूरत नहीं आएगी, मतलब जब भी आप प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करोगे, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। आई थिंक ये नॉर्मल स्केलेटन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज अ हेडर फाइल एंड दिस टेल्स द कंपाइलर टू यूज स्टैंडर्ड नेम स्पेस कंटेनर ऑफ आइडेंटिफायर डिक्लेरेशंस, ठीक है। जो भी आइडेंटिफायर मतलब क्लास के नाम, कोई डेटा टाइप ऐसे करके हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसको यूज करने के लिए वो बोलता है, ठीक है। हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का वो तो मेन से बिगिन होता है, ठीक है। और हम ऐसा सी आउट से आउटपुट करते हैं और सी इन से हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। ये तो इजी पार्ट हो गया। अब देखो जैसे क्या होता है ना कि आप देखे होंगे कभी कोड में कि जैसे इंट मेन लिखा होता है तो कहीं पे ये रिटर्न जीरो होता है, ठीक है, और कहीं पे ये ऑप्शनल होता है। मतलब इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस रिटर्न जीरो देन ऑल्सो योर कोड विल वर्क परफेक्टली फाइन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी जो पहले के जो कंपाइलर्स आते थे ना, ठीक है, तो उसमें जब आप यहाँ पे इंट लिखोगे, व्हेन यू आर राइटिंग इंट हियर, देन व्हाट इज दिस, मेन इज अ फंक्शन एंड दिस इज अ रिटर्न टाइप। ओके, तो ये बोलता है कि कोड को कि भाई इस ब्लॉक में जो भी कोड है ना, तो मेरे को एक इंटीजर तो डेटा टाइप रिटर्न करके इसको देना ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट लिखा हुआ है। बट क्या होता है ना कि जो नए कंपाइलर्स आ गए हैं, ठीक है, तो अब मोस्टली ये एरर हमें देखने नहीं मिलता अगर आप इसको इंक्लूड करो या ना करो, ठीक है, आपका कोड परफेक्टली फाइन, मतलब क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये समझ जाता है कि इंटीजर रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो ये इसलिए ऑप्शनल होता है। चलो ये तो हो गई बहुत सारी बातें। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये हो गई कि डेटा टाइप रेंजेस एंड ओवरफ्लो कंडीशंस। चलो मोस्टली हम जो क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डेटा टाइप्स जो मोस्टली हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं वो कैरेक्टर, इंट, लॉन्ग इंट। देखो मैं आपको बेसिक्स मतलब लैंग्वेजेस नहीं पढ़ा रही हूँ कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और ऐसा होता है, कैरेक्टर होता है, बूल होता है, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, मैं बस आपको एक बेसिक्स दे रही हूँ कि वो तो आप पढ़ ही लोगे, है ना। तो मैं बोल रही हूँ कि देखो डेटा टाइप जो मोस्टली हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो होता है कैरेक्टर, इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट और फ्लोटर डबल, ठीक है, मोस्टली हम ये यूज कर रहे होते हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि चलो ठीक है, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि जो मोस्टली हम यूज कर रहे होंगे वो होगा हमारा इंट, और होगा हमारा लॉन्ग इंट, और होगा हमारा लॉन्ग इंट, और मेरे पास होगा फ्लोट, और मेरे पास होगा डबल। ओके, ये मेरे पास ये डेटा टाइप्स हम मोस्टली यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो जो हम क्वेश्चंस करते हैं ना ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहां पे क्या होता है कि जो इंट की जो मतलब हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए होते हैं, आपने देखा होगा, आप लोगों में से बहुत लोगों ने तो क्वेश्चंस भी सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कोडिंग प्लेटफॉर्म से हमें कॉन्स्टेंट्स दिए रहते हैं, जैसे कि इंट आपको इतना ही मतलब जो रेंज है ना वो दिया रहता है हमें, ठीक है। तो देखो इंटीजर जब भी आप डेटा टाइप यूज करते हो ना, तो उसका जो मोस्टली मतलब रेंज होता है ना, वो आप ऐसे एक रफ एस्टिमेट में बता रही हूँ, ठीक है, इट्स नॉट मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो इसका जो हम रफ रेंज लेके चलते हैं ना वो -10⁻⁹ to 10⁻⁹ चलते हैं, ठीक है। guys please let me know if you are getting bored in the comment section, okay, then I'll change the slides and let you know something other. ओके, तो इंट का जो होता है ना वो 10⁻⁹ to 10⁻⁹ हम इसका रफ रेंज लेकर के चलते हैं। लॉन्ग इंट का होता है -10⁻12 to 10⁻12, ओके, इट्स 12, 10⁻12 to 10⁻12, ओके। और जो हमारा लॉन्ग इंट होता है ना वो हमारे 18 के रेंज में होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे 18 लिख रही हूँ, ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो मैं बोल रही हूँ कि हमें -10⁻18 to 10⁻18 होता है लॉन्ग इंट के लिए, ठीक है। और फ्लोट और डबल में आप बहुत ही बड़े नंबर आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे 10⁻18 से भी ज्यादा बड़े जो नंबर है ना वो फ्लोट और डबल में आप स्टोर कर सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक रिकमेंडेड, ठीक है। फ्लोट और डबल में आप कभी भी स्टोर मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, मैं आपको एडिटर पे बताऊंगी कि क्यों नहीं कर सकते। तो देखो
यहाँ पे क्या होता है कि इंट लॉन्ग इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, कि आपको मतलब कुछ ऐसा ए मान लो, मैंने एक इंट बना लिया, इंट डेटा टाइप का, ठीक है, इंट बना लिया मैंने, और इंट मैं बोल रही हूँ कि ये भाई इसका वैल्यू कर दे तू 10 कुछ कर देती हूँ, 5 कर लूँ, 5 इंटू 10, ओके, मैं 5 कर लेती हूँ, ठीक है, 10 5 कर लिया मैंने। और एक मैंने सिमिलरली एक बी बना लिया, और मैं बोल रही हूँ कि ये भाई इंट टाइप का है, इसको भी 10 5 इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, ठीक है, कर दिया मैंने। ये इंट टाइप का है, ये तो कर ही सकता है, 10 5 को स्टोर कर सकता है, ये भी 10 5 को स्टोर कर सकता है। अब आपके कोड में आपको कहीं पे ऐसा कुछ करना है कि आपको दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा जिससे कि इसका पावर इंक्रीज हो जाए, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप ए का पावर ले रहे हो, या फिर सिंपली आप समझो कि आप ए इंटू बी का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ए इंटू बी का कहीं पे मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको स्टोर कर रहे होगे कहीं इंट सी में, ठीक है, आप इसको कहीं स्टोर कर रहे होगे। तो आप मुझे बताओ, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो 10 है, क्या ये सी में स्टोर हो पाएगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आर यू देयर गाइस और आर यू स्लीपिंग? As if you are active, then please respond in chats. ओके, तो हाँ, आप लोग सही बोल रहे हो, ये तो इसमें स्टोर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो इंट टाइप का है ना, दिस इज इंट, ओके, इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, ये 10 9 तक ये स्टोर स्टोर कर सकता है, तो इसमें तो ये स्टोर नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं बोल रही हूँ क्या मैं लॉन्ग इंट यूज कर सकती हूँ? हाँ भाई, लॉन्ग इंट में मैं इसको स्टोर कर पाऊंगी, लॉन्ग लॉन्ग इंट में कर पाऊंगी, हाँ लॉन्ग लॉन्ग इंट में भी कर सकती हूँ, बट इंटीजर में तो नहीं कर पाऊंगी। बट अगर इन केस आपने गलती से कहीं पे लिख दिया तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा ना वहाँ पे, है ना, इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो तो स्टोर ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो छोटी चीजें होती है ना, वो आप कोड करते टाइम आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो अच्छे प्रोग्रामर्स भी होते हैं ना, वो ये चीजें भूल जाते हैं, और इसकी वजह से फिर कोड में उनको कुछ अनयूजुअल बिहेवियर या कुछ एरर्स आने लग जाते हैं, तो फिर वो सही नहीं है, ठीक है। आपको ये छोटी छोटी चीज दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एडिटर पे दिखा रही हूँ, चलो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा दे रही हूँ ये सारी चीजों को, ओके, फ्रेश कोड लिखती हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये लो, इंट ए इज इक्वल टू कर लो, ये 10 5 हो गया, ठीक है। मैंने बोला कि इंट बी इज इक्वल टू कर लो, 10 5 हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि भाई इंट सी मुझे दे दे ए इंटू बी करके, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि सी आउट कर दे सी को, ठीक है, मैं बोल रही हूँ सी आउट कर लो सी को। अब देखो, अगर मैं इसको कंपाइल करूंगी ना, अब देखो क्या होगा, देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ठीक है। क्या आप 10 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ओवरफ्लो हो गया है, मतलब ये तो स्टोर ही नहीं कर पाएगा, तो हम क्या कर रहे होंगे, इसको हम इसको लॉन्ग इंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे तरीके, आप लॉन्ग इंट में कर लो, लॉन्ग लॉन्ग इंट में कर लो, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि चलो भाई ठीक है, अब मुझे सी दे दो ऐसे करके, और मैं बोल रही हूँ ए इंटू बी कर दो, ठीक है। अभी देखो जरा प्रिंट करके हो रहा है क्या, ओके, लॉन्ग इंट ए करके 10 5 लॉन्ग इंट गिविंग एरर। तो मोस्टली जैसे हम करते क्या है ना कि हम, हाँ देखो अभी आ रहा है, ठीक है, देखो मतलब ये लॉन्ग इंट पे ये नहीं ले पा रहा था, आई थिंक ये 6 हो गया क्या, अच्छा नहीं, तो ये क्या है ना कि देखो अभी आ रहा है सही आउटपुट, क्योंकि आप लॉन्ग लॉन्ग इंट को स्टोर कर सकता है। और देखो नेक्स्ट चीज क्या होता है ना, कि जो हमारे कैलकुलेट, ये तो हो गया मतलब डेटा टाइप्स की बात, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है ना, वो हमारा कैलकुलेशन, एक छोटी सी बात है बट ध्यान में रखो कि जो कैलकुलेशन होता है ना, वो हमारा हमेशा हमेशा क्या होता है, जो हायर डेटा टाइप्स है ना उसी में होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये लो, इंट ए इज इक्वल टू, मुझे मैं नॉर्मल एग्जाम्पल जैसे 11/2 कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए आप बताओ, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 11/2 है, मतलब 11 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ए में उसको स्टोर कर लो। तो ये तो क्या है, 2 को डिवाइड करेंगे 5.5, तो ए में 5.5 स्टोर होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं सी आउट ए करके कि क्या ये हो रहा है, ठीक है। तो नहीं भाई, ये तो 5 हो रहा है, अरे ऐसे कैसे, ये तो 5.5 होना चाहिए था। तो क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है, 11 एक इंटीजर है, ठीक है,
2 एक इंटीजर है, तो जब इंटीजर और इंटीजर का डिवीजन होगा ना, तो वो कैलकुलेशंस भी हमेशा जो हायर, जैसे इंटीजर और इंटीजर में तो इंटीजर ही हायर डेटा टाइप है, तो वो कैलकुलेशन इंटीजर में ही होगा, ठीक है। जैसे कि देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर रही हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पे डबल कर दोगे ना, मैंने यहाँ पे डबल कर दिया, तब तो ये 5.5 स्टोर होना चाहिए था, बट देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 5 हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो डबल है ना, इसको तो 5.5 स्टोर करना चाहिए था, बट नहीं। क्या होता है ना कि देखो जो आपका कैलकुलेशन होता है ना, वो हमेशा हायर डेटा टाइप में होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटीजर और इंटीजर है, तो ये कैलकुलेशन हमेशा क्या होगा, इंटीजर में ही होगा। अब आप इसको डबल में स्टोर कर लो, फ्लोट में कर लो, वो हमेशा ये क्या होगा, इंटीजर में ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 11.0 कर देती हूँ, ठीक है, तो अभी देखो कि एक तो इंटीजर हो गया और एक क्या हो गया, एक तो डबल ए हो गया ना, तो क्या होगा, हायर डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट या डबल होता है। तो क्या होगा कि अब ये मेरा क्या कर रहा होगा, अब ये मेरा पॉइंट स्टोर करेगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन सब क्या हो गई मेरी, देख रहे हो 5.5 कैलकुलेशन क्या हो गई मेरी, वो हायर डेटा टाइप में हो गई, ठीक है। तो ये छोटी चीज है, बट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, उस पर ध्यान दे कि वो हमारा अगर हायर डेटा टाइप है, तो वो कैलकुलेशन हमेशा हायर डेटा टाइप में ही होगा, ठीक है। I think it is clear now. Uh, Let me move ahead. I'll share this PPT for your reference. Okay. So now I think, are you guys sleeping or are you are you there? Please respond me in the chat. Okay, present ma'am. Okay, okay. I'll finish it up now. Like, yeah, I'll finish it very fast. Okay. सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सीटीपी में आता है, जो बहुत ही ऐसे बोलते हैं डरावनी चीज है, वो है पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस, ठीक है। तो देखो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, ठीक है, कि हमें मतलब हम मैं एक बार बता देती हूँ कि पॉइंटर्स होता क्या है। तो व्हाट इज पॉइंटर? तो देखो जैसे कि क्या होता है कि हम एक, जैसे एक नया ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने बोला कि मैं ले रही हूँ एक, जैसे कि मान लो कि मैंने एक इंट बनाया, ठीक है। अब मैं मेमोरी एलोकेशन के टर्म में बात कर रही हूँ, तो मैंने एक इंट बनाया, इंट ए इज इक्वल टू 5 मैंने बोल दिया, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना कि इंट की जो, वो कंपाइलर्स पे डिपेंड करता है। तो इंट क्या होता है ना, वो 32 बिट, मतलब जो कंपाइलर्स पे डिपेंड करता है, बट मोस्टली क्या होता है ना कि ये 4 बाइट्स का होता है इंटीजर, ठीक है। ये 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने क्या बोला कि मैं एक ब्लॉक बना दो, मतलब ये मान लो कि आपका मेमोरी सेगमेंट है, तो मैंने बोला कि इसमें मतलब एक मुझे 4 बाइट्स का मेमोरी ला करके दे दो, ठीक है। जैसे ये बहुत सारे आपके मेमोरी ब्लॉक्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे। तो मैंने बोला कि इसमें से मुझे कोई भी एक 4 बाइट्स का एक ब्लॉक ला करके दो। तो उसने बोला कि ठीक है, 4 बाइट्स का चाहिए तो ये ले लो, ठीक है। मैंने इसको ये दे दिया, ठीक है, मैंने ए को यहाँ पे स्टोर करा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, 5 डाल दिया, ठीक है। इस ब्लॉक में मैंने 5 डाल दिया, ठीक है। बट अब बताओ ये मेमोरी है ना, यहाँ पर तो एड्रेसेस के हिसाब से काम होती है। तो मैंने बोला कि चलो इसका एड्रेस मैं मान लेती हूँ कि कुछ है, क्या मान लो 100 मान लो, चलो ठीक है, 100 मानने में क्या जाता है, 100 मान लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसका जो इस ब्लॉक का जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना, स्टार्टिंग वो 100 है, ठीक है। और स्टार्टिंग को ही हमेशा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये 100 है। तो बट अब पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है कि देखो जैसे हमें किसी ब्लॉक का एड्रेस चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, एम्परसेंड यूज करते हैं, ठीक है। एम्परसेंड अगर ए आप आउटपुट करने की कोशिश करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, एड्रेस मिलेगा। एड्रेस मिलेगा ना, एम्परसेंड से क्या मिलता है, एड्रेस मिलता है। तो एड्रेस मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 100। अगर मैं 100 लेके चल रही हूँ, वैसे तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है एड्रेस, बट यहाँ पे मैंने 100 लेके चला, चलो ठीक है, 100 मिल गया मुझे। अब मैं बोल रही हूँ कि यार इस एड्रेस को ना, मतलब किसी एक ऐसे वेरिएबल में स्टोर कर दो ना कहीं पे, मतलब मैं फर्दर कुछ यूज हो ना, तो मैं वहां से भी मॉडिफिकेशन कर पाऊँ, या फिर मुझे एक इसको स्टोर कर दो किसी वेरिएबल में। तो वहां पे क्या होता है कि हमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एक पॉइंटर बना लो, इंट स्टार पी करके, स्टार, ये इसका डिक्लेरेशन होता है कि स्टार पी करके मैंने एक पॉइंटर बना लिया। और मैंने क्या बोला कि इसमें मुझे ए का एड्रेस रख दो, ठीक है। आप सिंपली समझो कि आप जैसे यहाँ डिक्लेयर करते हो, तो आप यहाँ पर एक कुछ वैल्यू डालते हो ना। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंटर बना लिया मैंने, और उसमें मैंने क्या कर दिया, वैल्यू डाल दी, ठीक है। क्या डाल दिया मैंने, तो एड्रेस डाल दिया मैंने, ठीक है। तो बट इस पॉइंटर का भी खुद का एक एड्रेस होगा, और ये क्या स्टोर कर रहा होगा, ये ए का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। बस सिंपली यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक जल्दी से कोड एडिटर पे दिखा देती हूँ, ठीक है।
जैसे मैंने बोला कि मैंने लिया था int x इज इक्वल टू 5, ठीक है, सॉरी, int x इज इक्वल टू 5 में लिया मैंने, और मैं बोल रही हूँ कि यार मुझे ना एक पॉइंटर चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है, पॉइंटर बना लिया मैंने, और मैं बोल रही हूँ इसमें ना x का एड्रेस स्टोर कर लो, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर एड्रेस इसका प्रिंट करके देखूंगी ना x का, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, x का एड्रेस, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर मैं स्टार पी कर रही हूँ, स्टार पी हम क्यों यूज करते हैं, डी रेफरेंसिंग के लिए, ठीक है। मतलब कि जो मेरा मतलब जो पी में जब हमने स्टोर किया है ना, तो स्टार पी को हम ऐसे रीड करते हैं, ठीक है, वैल्यू एट पी, मतलब वैल्यू एट जो भी एड्रेस जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। देखो हम पी का, पहले हम पी को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो पी को अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे भी हम कैंडल लगा लेते हैं। ओके, ये देखो क्या हो गया, अरे ये तो सेम ही प्रिंट हो गया। कैसे? मैंने क्या बोला कि x का मुझे एड्रेस लाके दो, एंड x एम्परसेंड x किया था ना मैंने, तो मुझे x का एड्रेस लाके दे दिया। ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में मैंने बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पर तो x स्टोर्ड है। फिर मैंने क्या किया, उस एड्रेस को मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ कि यार ये सी आउट पी है ना, मुझे ये पी प्रिंट करके दो। पी में एक्चुअली स्टोर क्या हो रहा होगा, पी में क्या स्टोर हो रहा होगा, जो एक्स का जो एड्रेस जो हमने स्टोर किया, पी वही तो है ना। तो पी मैंने तो दिखा दिया कि ये लो, पी में मैंने ये स्टोर किया, एड्रेस स्टोर किया है, ठीक है। बट अगर मुझे क्या करना है, मुझे एक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगी, एक डी डिफरेंसिंग ऑपरेटर लगा दूंगी। अब मैं इसको कैसे रीड कर रही हूँ कि मुझे क्या प्रिंट करना है, वैल्यू एट पी, ठीक है। तो वैल्यू एट पी मतलब कि वैल्यू एट पी में क्या स्टोर था, पी में तो एक्स का एड्रेस स्टोर था। तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे वैल्यू एट पी चाहिए, मतलब वैल्यू एट दैट एड्रेस विच इज स्टोर्ड इन पी, ठीक है। अभी देखो क्या प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप समझ गए पॉइंटर्स वर्क कैसे करता है। सिंपली हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंटर्स में हम क्या स्टोर करते हैं, किसी भी वेरिएबल का हम एड्रेस स्टोर करते हैं और उसको हम प्रिंट करने के लिए डी डिफरेंसिंग ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। और सिंपली हमारा जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो भी हम कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। बट सीपीपी में क्या होता है ना यार, कि अगर आप पॉइंटर्स यूज कर रहे हो ना, मतलब आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है, देन वेल एंड गुड, ठीक है। बट पॉइंटर्स आप ज्यादा यूज नहीं करते हो, ठीक है। आप मोस्टली क्या यूज करते हो, रेफरेंसेस यूज करते हो, क्योंकि रेफरेंसेस से क्या होता है, आपका कोड इजी हो जाता है, ठीक है। आपको पॉइंटर्स के चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़ता, आप रेफरेंसेस यूज कर लो, आपका काम वैसे भी हो जाता है, आप मॉडिफिकेशन तो कर ही पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक एक नॉर्मल सा एक छोटा सा एक लिखती हूँ, ठीक है। आप उसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक जैसे छोटा सा कुछ बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि स्वैप का हम बना लेते हैं एक फंक्शन, ठीक है, या फिर सम का स्वैप का बना लेते हैं, ठीक है। चलो इंट a इज इक्वल टू, मैंने 5 बोल दिया, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, अब बोर ना हो रहे हो गए। चलो इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 10 कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने एक स्वैप फंक्शन को कॉल किया और मैं बोल रही हूँ कि यार इसमें ना a और b को मैं भेज रही हूँ, इसको स्वैप करके मुझे दे देना, ठीक है। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं सी आउट कर रही हूँ और मैंने बोला कि चलो a और b मुझे प्रिंट कर दो, स्वैप तो हो गया होगा। चलो मैं इसको एक स्वैप फंक्शन तो बना लूँ पहले, ठीक है। मैंने एक स्वैप फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैं इंट a और इंट b ले रही होंगी, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि चलो इसको स्वैप करना है। स्वैप का हम सिंपल जो यूज करते हैं, जैसे इंट टेम्प इज इक्वल टू एक टेम्प वेरिएबल में a को स्टोर करेंगे, ठीक है। a में b की वैल्यू को स्टोर करेंगे और b में हम टेम्प को डाल देंगे, तो ये हमारा क्या हो रहा होगा, स्वैप हो जाएगा, है ना। तो चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके ओके, ये अरे ये क्या, ये तो स्वैप नहीं हुआ ना। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, हमारा वही प्रिंट हो गया, ये तो स्वैप ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप समझो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन में मैंने a और b को भेजा, ठीक है। ये a और b पहले क्या डिक्लेयर्ड है, ये यहाँ वाले a और b से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दिस a एंड b आर लाइक डिफरेंट इंटीजर्स, ओके। तो हम यहाँ पे a और b को यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे थे कि हमने 5 और 10 को भेजा, ठीक है। तो यहाँ के a और b में 5 तो आ गया, ठीक है, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 10 तो आ गया, ठीक है। यहाँ इसने स्वैप भी कर दिया, ठीक है, स्वैप तो कर दिया इसने, बट ठीक है a और b स्वैप हो गया, बट यहाँ इससे इसको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a और b तो ये सेम a और b तो नहीं थे ना। ये a और b मैंने बनाया भेजा और यहाँ पे दूसरे इंटीजर को डिक्लेयर किया और a और b में स्टोर हुआ, उसने स्वैप किया और फिर कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्वैप ही नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे कोड में हमें छोटे छोटे मैक्रोस, छोटे छोटे फंक्शंस बनाने होते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं ना कि रेफरेंसेस भेज देते हैं, हमें सेम एरेज के अंदर, हमें सेम
वेक्टर्स के अंदर, या हमें सेम कोई भी इंटीजर या फिर कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं उसके अंदर हमें मॉडिफिकेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एज अ रेफरेंस भेज देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ए और बी भेजा ना, मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगी कि मैं % लगा दूंगी। ठीक है, अगर आप % ए लगाते हैं ना, जैसे इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि मैं ऐसे कर रही हूँ, int %, ए इज इक्वल टू ए। मतलब क्या है कि मैं एक इंटीजर का रेफरेंस क्या कर रही हूँ, दूसरे इंटीजर को दे रही हूँ। ठीक है, मतलब ये सेम ही चीज है। ठीक है, ये दोनों सेम ही मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा। तो मैंने क्या बोला कि यार ए और बी ना ये सेम ही चीज है, मैंने इसी ए और बी को भेजा है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्वैप कर लिया। अब मैं बोल रही हूँ चलो प्रिंट करके देखते हैं यार अब क्या हो रहा है। ये देखो अभी ये स्वैप हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेम इंटीजर्स को भेज रही हूँ ना, सेम मेमोरी को मैं पॉइंट करवा रही थी, और यहाँ पे वो स्वैप हुआ, तो मेरा जो ओरिजिनल जो मेरा इंटीजर था, जो डेटा टाइप था, वेरिएबल था, उसमें वो मॉडिफिकेशंस मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना। अभी मुझे 10 और 5 दे रहा है। सेम काम आप कर सकते हो पॉइंटर की मदद से भी, बट क्या होता है पॉइंटर की मदद से आपको फिर क्या होगा कि ये थोड़ा सा कोड लेंदी हो जाएगा, लेंदी नहीं होगा, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे हमेशा वो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज करो। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इजी है ना, हम सिंपली क्या करेंगे, रेफरेंस यूज कर लेंगे हमें जहां भी मॉडिफिकेशंस कराने हैं, है ना। तो चलो ये तो हो गए पॉइंटर से रेफरेंसेस की बात। चलो नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्टली हमारे क्वेश्चंस में होता है ना कि जो सेगमेंटेशन फॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, बट सिंस हमने अभी एरेज पढ़ा नहीं है तो इस स्लाइड को मैं रहने देती हूँ। इस स्लाइड को मैं डिस्कस करूंगी जब भी आपका एरेज हम पढ़ रहे होंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है, ये सेगमेंटेशन फॉल्ट्स होते क्या है। ठीक है, आई थिंक अभी के लिए ये बहुत ही था, बहुत ज्यादा हो गया, इतना टाइम इसको नहीं लेना चाहिए था, बट इट्स फाइन। आई थिंक आपको ऐसा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि मैंने आपको जो भी बताया ना वो कुछ कुछ डिफरेंट सा था। मैंने आपको ये नहीं बताया कि हाँ सी आउट कैसे करते हैं, सी इन करते हैं, मतलब मैंने आपको कुछ अलग बताया। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभिराज, आर यू देयर? Yeah, Sophia. Okay, so we have given you the Telegram link here. You can join. And from the next week onwards, we will be starting our DSS session. And the first session will be based on arrays. So please join that session and just see. आज इंट्रो था, आई नो आपको पता होगा, मतलब आपको बेसिक तो पता ही होंगे, तो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, बट आप नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करो एंड यू गाइज विल लव इट, बिकॉज विल बी टीचिंग यू एरेज इन सम डिफरेंट अप्रोच, जो आपने शायद नहीं अप्रोच वो नहीं सीखा होगा। तो टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन करो और आप अपने डाउट्स वहाँ पे क्लियर करो। आपके पास 1 वीक का टाइम है, आप 1 वीक में आप लैंग्वेजेस सीख सकते हो। अगर आपको लैंग्वेजेस में दिक्कत है तो आप लैंग्वेजेस सीख लो, और फिर हमें वहाँ पे हम लोग वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आपको जो भी डाउट हो सेशंस के रिगार्डिंग, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, या डेटा स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हो। तो ऑल राइट, If you all would like, yeah. I was just trying to say, if we have time, I'll like to try to explain them about something about Microsoft Teams because we will be shifting there. So अगर तुम लोगों का हो गया तो मैं बता दूँ तो थोड़ा सा Microsoft Teams के बारे Just a में। second कि मैं बस ये बोल रहा हूँ कि yeah, we all know that आज का सेशन काफी बोरिंग हो गया होगा because of PPTs and we are just discussing the basics of languages. So yeah, we all know that you all know basics, but from our side we don't need to left anything that कि आप बाद में बोलो कि yeah, we don't know things, we don't know this. So इसलिए we just discuss the basic things. We all know that yeah कि today's session was boring. मतलब यार नीडेड था वो, मतलब जरूरी था कि अगर हम बेसिक्स नहीं डिस्कस करेंगे तो देन हाउ वी विल गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। तो मतलब ये नीड था उसका, तो दैट्स वाई आज सेशन हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग हो गया आप लोगों के लिए, बट या डोंट वरी अबाउट दैट, फ्रॉम द नेक्स्ट संडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरे, तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा। एंड आज ये दिक्कत होगा कि वी आर नॉट सीइंग द चैट्स कंटिन्यूअसली, लाइक व्हाइल आई वाज सेइंग माय पीपीटी, तो मेरे पास चैट का एक्सेस नहीं था। So don't worry about that. From the next session, next Sunday, we are going to start array, and we are going to look at everything, the chats on the while teaching. We are going to look at chats. So be with us and join the Telegram group. I think Astos had already shared the link. So join the Telegram group if you want to learn DSA. Okay. Thank you. Saket, you can continue now. Yeah, so अगर हो गया तो hello everyone. So we'll be shifting to Microsoft Teams from next week because Google Meet is not so accessible and so featureless. It's a featureless platform basically because as Aviraj already said that he was having an issue accessing the chat while he was giving a presentation. So that issue and many more issues regarding the screen recording and resource sharing, as you all were asking about
sharing the presentation to PPT. So I'll show you a quick overview of how to use Microsoft Teams, how to log in, and how to join our group. Okay. So let me present my screen and tell me if my screen is visible. Okay. So is my screen visible now? Yeah, so Yes. So I'll show you here. So this is the UMS page, as you can see. So first of all, you have to go and you have to take access of your Microsoft ID. Okay, the college has provided you an official email ID. So you'll have to go and find it out where that in messages, and then you'll have to change the password of that ID. So I'll show you how you can do that. So I'll log in into my UMS. So here you can see there's a My Messages tab. Okay, you can see My Messages. So you have to go to All Messages here, and we'll go to Search Messages. Okay. So here you can see that I have total 881 messages, and it will be hard to shuffle around and find the right email. So what you will do, you'll search right email here and search it. Okay? So when you do that, you'll see that there will be a subject that congratulations, your LPU email has been created, and you will get your credentials here. Like mine is this one right here, and you will be provided a first-time password right here. See, so you'll have to log in, and then you'll have to change this password to something more complex, to your own password. Okay, so take these credentials and come back. Okay, go to the Microsoft account, log in, change your password, and then come back to Microsoft Teams. Okay, so when you'll open Microsoft Teams, or when you'll open the login Microsoft Online, okay, when you'll go to login into Microsoft, you'll see this type of screen. Okay, so if you haven't logged in before, you won't see these two, but you can use another account, and then you can enter your email ID. So when you enter your email ID, you will be asked for the password. So you can give this one-time password that the university has provided you. Or if you have changed the password, then you can give it the changed password. Okay? You sign in. Okay. So my sign in timed out. So I'll sign in again. See. So it will ask me if I want to stay signed in. So it's upon your choice. I'll say yes. So it's checking my credentials, and it will take me to Microsoft Teams. Okay. So here you'll see this screen right here. So you can go to use the web app instead. You can get the Windows app, but I'll say you go with the web app. Okay. So here, now you can see this is my dashboard. Okay, and this is the group you need to join. So I'll share the link, and the link will be shared in the WhatsApp group as well. I'll share the link here as well. So I'll copy this link and I'll share it to you here in the chat. So you can copy it. So first change your password and then go join it here. Okay. So when you join, you will be greeted with this, you see this chat box here. And one of the very great features of Microsoft Teams is that we could share resources right here. Okay. So any resources, any PPTs, or any source codes of the questions discussed in the session, we could share it here. We will upload it for you, and then you can access it from right here. Okay. So this is the Geeks for Geeks official page. We have already made it. It's a general here. So here you can chat with anyone you want. Have a private chat or have a group chat. But I'll warn you that it is not for the misuse. You just use it responsibly. Okay, it's an official group. Plus, we have your email ID. Okay, your email ID is comprised of your name and your registration number. So take it in mind that we have both. We have your name and we have your registration number. So don't disturb anyone. Don't do unnecessary chats on the official group, because it will be a disturbance to us and other members as well. Okay. So use it responsibly, and if you don't use it responsibly, we could ask LPU to take action against you. So please just use it responsibly. Okay. We are all here to learn, so we'll use it responsibly, and it will help you in the future if you use Microsoft Teams. Okay. So that's all.
just go and have your credentials from here and log in, and then use this link. Okay, use this link and you will be able to join the official group. And from the next time, we'll be mailing you a link to the meeting. Whenever we keep a meeting, we'll be mailing you a link, and with that link you can join the session. Okay, so that was all. If you have any doubts regarding this, using Microsoft Teams or using the UMS or finding your credentials, you can message on the Telegram group and we'll be happy to help. Okay, so that was all. If you have any doubt, you can ask in the chat box as well.